सभी दर्शकों का जैन टॉक्स के 98th सेशन के अंदर स्वागत है। आज का सेशन अपने आप में बहुत ही खास है क्योंकि आज जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर हमारे साथ मुमुक्षु बहन नम्रता जी जुड़े हुए हैं और आज उनकी जीवन के बारे में, उनके जीवन में जो परिवर्तन आया और वो जिस मार्ग पे जा रहे हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आज से ठीक 8वें दिन पे यानी कि 22 मई को वो दीक्षा ले रहे हैं। जैन दीक्षा लेना कोई सामान्य बात नहीं है। आजीवन चुस्तता से अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे 5 महाव्रतों का पालन करना ही जैन दीक्षा है। कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा बनाने की साधना ही जैन दीक्षा है। ऐसे कठिन मार्ग पे वे जा रही है, पर जब इतनी छोटी उम्र में वे दीक्षा ले रही है तो कईयों को प्रश्न होते हैं और बहुत सारी जानने की जिज्ञासा होती है कि उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन कैसे आया। तो इसी बात को हम आज जानेंगे। मैं स्वागत करता हूं नम्रता बहन का जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर। स्वागत है नम्रता बहन। और साथ ही साथ जैन फाउंडेशन के फाउंडर श्री रमेश भाई शाह का भी मैं स्वागत करता हूं। जय जिनेन्द्र नम्रता Ben. Thank you, Neil Bhai. A warm welcome to all the Jain Talk members. Today, I'm simply amazed to introduce to an intelligent, well-educated young lady. Her name says all, Namrata. Highly educated, she has completed her BSc in psychology. मैं थोड़ा बीच में हिंदी भी बोलूँगा. From St. Xavier's, Mumbai, and she has done diet and nutrition from the US and diploma in English literature from MGM Gujarat. The moment I came to know that Namrata is going to take Diksha on May 22nd, and I read about St. Xavier's, I was so impressed that just to give you any institution is known after their alumni, and some of the alumni I would like to mention about the St. Xavier's is most renowned are Dorabji Tata, Ratan Tata, Ajiz Premji, Mukesh Ambani of the business world. Then acting world is Salman Khan, Anil Kapoor, Vidya Balan, Tabu, Smita Patil, Sabna Azmi, Farooq Sheikh. There are many singers, Pankaj Udas, Zakir Hussain. Amazing institution which she has come from. Even people like Sunil Gavaskar, Rajesh Sardesai, Soli Sorabji, all from the same institution. So for me, an institution is known after what the alumni they have produced, and Namrata is one of those coming from the such an institution. An overachiever whose life would have been a path of success, whatever she did. The same thing what we run after without knowing in life what actually we are running on a treadmill. Now she is taking a different path, and let us understand what is the transformation has come and why she has chosen that after achieving so much in the life what we are living in. She's also been in her journey of Dikshati. What really touched me is that she visited 119 Kalyanat Bhumi while doing Master Shaman. It's simply beyond my imagination and determination of this young girl. She's also been the state champion in the boxing. That's her passion. But she would have gone for a national boxing championship. But now she has chosen a different field of boxing. She wanted to do the boxing with karma, and she wanted to win over. And as Neelbhai told, from Atma to Paramatma. So eager to learn more about Namrata ji, to understand what helped her to make this life choice. What about Jainism inspired her to walk on the path of enlightenment? Namrata ji, आपका बहुत स्वागत हमारे मंच पे, and we really look forward and inspiration from you for all the youngsters who have joined. Thank you so much. Neelbhai.
थैंक यू सो मच रमेश भाई। बहुत सुन के अच्छा लगता है कि महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव से कोई व्यक्ति जिन्होंने पथ पथ के ऊपर जीवन के, मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारी ऊंचाइयों को हासिल किया है। उन्होंने अपने जीवन में 193 ट्रॉफीज से पुरस्कृत, खुद को पुरस्कृत हुए हैं। यानी आप सोचिए कि कितने मल्टी टैलेंटेड हो गए, उन्होंने कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे स्टेट लेवल पे उन्होंने बॉक्सिंग को विन किया, और अब नम्रता जी कर्मों के साथ बॉक्सिंग करने जा रही है, और उनका जो गोल है वो मोक्ष को प्राप्त करना है। तो ऐसे नम्रता बहन को आज हम प्रश्न पूछेंगे, और मैं श्रोता से भी कहना चाहूंगा कि आपको कोई प्रश्न है तो आप Q&A में टाइप करिए, हम वो प्रश्न भी लेंगे। और जितना हो सके ज्यादा उतना उनके उसके पीछे जो पर्सपेक्टिव है, उनकी लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया, ये सब चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं नम्रता बहन का आज के टॉक सेशन में। नम्रता बहन प्रणाम। प्रणाम। नम्रता बहन, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप महाराष्ट्र के जिस गांव से आते हो उसके बारे में हमें थोड़ा जानना है, क्योंकि सुना है कि महाराष्ट्र के कुछ कुछ इंटीरियर गांव के अंदर तो बहुत कम जैन है। तो आप जो गांव से आते हैं उसके बारे में हमें जानना है, और साथ ही साथ आपने जैन धर्म की पढ़ाई करना कब से शुरू किया, और जैन धर्म की ऐसी कौन सी बात है जो आपको दीक्षा के लिए प्रेरित करती है। Namo Orientanam, Namo Lesavanam. First of all, I would like to thank Neil Bhai for this beautiful for arranging this beautiful session. सबसे पहली बात तो आप सभी को, आप जो देख रहे हैं उनको सभी को मेरा प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगी, मैं जहाँ से आती हूँ वहां पर एक भी जैन का घर नहीं है, बस हमारा ही एकमात्र जैन का घर है, और हमारा खुद का घर देरासर है। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक संघ है, वहां पर शिखरबंदी देरासर है। वहां पर कई कबार जाते हैं तो महात्मा के यदि मोस्टली महाराष्ट्र वगैरह साइड के गाँव में चातुर्मास नहीं होता है, बट यदि कभी कभार चातुर्मास हो और डैड पहले फोर्स करते थे तो वो खुद ही दर्शन करने लेके जाते थे, और देखकर नॉर्मली मते मंदानी किया और घर पे आ गए। ज्यादा कुछ पता नहीं था। फिर तो स्टडी के इसमें आगे बढ़े तो सबसे पहली बात, मैंने जैन धर्म की पढ़ाई कब स्टार्ट की। नॉर्मली पापा ने और मम्मी ने, उनको जितना आता था, एक्चुअली उनको जैन धर्म के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट उनको 2 प्रतिक्रमण आते थे, तो 2 प्रतिक्रमण मुझे उन्होंने बचपन से कराए थे। और बाद में भी भैया हेल्प की। एक महात्मा थे यहाँ पर जिनका चातुर्मास था, उन्होंने मुझे हेल्प की, 5 प्रतिक्रमण जितने लन कराए। और वो मुझे ऐसा लगता है वो पढ़ाई कर्तव्य में आती है, वो पढ़ाई नॉलेज के बेसिस पे आपको जैनिज्म मिला और आपको उसमें टच कर गई बातें, वैसा नहीं होगा, क्योंकि वो प्रतिक्रमण हमारे सूत्र कर्तव्यबद्ध होते हैं। तब मुझे जैन धर्म की पढ़ाई कब स्टार्ट की, मुझे ऐसा लगता है जैन धर्म की पढ़ाई नॉर्मली हम जो प्रतिक्रमण वगैरह सूत्र वगैरह लर्न करते हैं वो पढ़ाई है, ऐसा नहीं है। जैन धर्म की पढ़ाई कब स्टार्ट की, जब आपने उस लाइफस्टाइल को समझा। मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई से ज्यादा मुझे वो लाइफस्टाइल ने बहुत अट्रैक्ट किया था। बाहर जैसे मैं जाती हूँ, हमारी लाइफस्टाइल देखती हूँ, नॉर्मली मेरे फ्रेंड्स वगैरह जब हमारा प्लेइंग पीरियड रहता था वो लोग खेलते थे, और मैं ट्राई करती थी स्टडी वगैरह करके या मेरा होमवर्क कंप्लीट कर मैं जल्द से जल्द उसका, नॉर्मली मैं यदि वो अभी यहाँ पर होमवर्क कंप्लीट कर लूंगी तो मैं घर जाके दूसरी एक्टिविटीज कर सकूंगी। बस उसी तरह मेरी कुछ लाइफ की प्लानिंग रहती थी, और हमेशा कैसे समय को बचा जाए वो मेरा सोचना रहता था, क्योंकि ये सबसे प्रीशियस थिंग है ऐसा मुझे लगता था। तो जब एक महात्मा की लाइफ मैंने देखी, पूज्य यशोनिधि श्री जी महाराज साहब की, थैंकफुली उनकी लाइफ मुझे लगता था संयम जीवन, मैंने 2 टाइम का प्रतिक्रमण पढ़ लिया, बट इसके अतिरिक्त कि संयम जीवन में क्या है, संयम जीवन की पढ़ाई से, अपने परमात्मा की पढ़ाई से, शास्त्र की पढ़ाई से भी ज्यादा मुझे ये लाइफस्टाइल ने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया, जो लाइफ वो जीते, और इनकी जो मूल सिद्धांत है किसी को हर्ट नहीं करना। तो एक्चुअली जब मैं बॉक्सिंग करती थी तब मेरे अपोनेंट को मेरे से हर्ट बोलते, उनको चोट लग गई, इतनी लगी कि वो एक्चुअली वो कोमा में चले गए। तब मुझे ऐसा लगता है क्या ये सक्सेस है, किसी को हर्ट कर आप सक्सेस ट्रॉफी जीत रहे हो, उसकी खुशी मना रहे हो। मैंने तो ट्रॉफी जीत ली,
फर्स्ट आ गई, बट क्या मुझे वो सही में खुश, ऑनेस्टली सच बताऊं, मुझे वो ट्रॉफी ने खुश किया ही नहीं, मुझे उससे खुशी मिली ही नहीं। तो खुशी एक्चुअली, मैं खुशी का दायरा, मेरे लिए खुशी वो है सेटिस्फेक्शन। पहले नहीं पता था ये सारी चीजें, धीरे धीरे जब महात्मा मिले, उनसे प्रकरण, भाष्य, कर्मग्रंथ वगैरह किए, उसके अर्थ जानने मिले, तो इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। यूजुअली 16-17 ईयर्स में मेरी, हमारे यहाँ पर घर पर कोई जैन साधु वगैरह का, तो महात्माओं का हमको संग नहीं है, बट होपफुली डैड, आई वुड लाइक टू थैंक टू माय डैड। उनके वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल है, क्योंकि हमारे घर पर 7,000 बुक्स है, हमारे घर पे खुद की लाइब्रेरी है। हाँ, तो एक बार जस्ट बुक, फर्स्ट बात तो ऐसा हुआ कि एक बार जस्ट मुझे बुक हाथ में रीड करने में आई थी, वो मुझे भद्रगुप्त विजय जी महाराज साहब की थी, और मुझे कॉन्सेप्ट काफी मेरे हार्ट को टच कर गई। इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट था उसके अंदर, किसी को हर्ट नहीं करना। वो मुझे ऐसा लगता है सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप आपके वे में आगे बढ़ो, लेकिन आप नॉर्मली आपके वे में आगे बढ़ो। जब हम खुद के वे में आगे बढ़ते हैं और हम किसी को हर्ट करते हैं, या किसी से, सच बताए तो आगे बढ़ना किसी को पीछे कर कर या किसी को हर्ट कर कर नहीं, आगे बढ़ना इसका मतलब ऐसा होता है कि आप सबके साथ प्रेम से, और आप नॉर्मली सिर्फ आपके आगे बढ़ने के, आपको आगे क्यों बढ़ना है पहले वो जानकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी मेरी खुद की फिलोसॉफी थी। वो फिलोसॉफी काफी हेल्पफुल रही मेरे लिए। वो फिलोसॉफी से एक बुक रीड की, 2 बुक रीड की, एक्चुअली स्टार्टिंग में 2000 जितनी मैंने बुक्स रीड की, वो रीड करके मुझे भावना हुई कि अपने जैन बुक्स इतनी अच्छी है, तो ये शास्त्र वगैरह जब रीड करेंगे तो ये कितने कितने बढ़िया और उत्तम होंगे। तो एक आचार्य भगवान पूज्य रत्न सुंदर महाराज से, पूज्य वरबोधी सूर्य महाराज से कांटेक्ट था डैड का, तो उनसे मैंने रेफर किया कि कोई गुरु भगवान मिल सकते हैं क्या मेरे लिए, मुझे स्टडी करनी है जैनिज्म की। पहले मैंने नॉर्मली, मेरे फ्रेंड सर्कल था, तो नॉर्मली बाइबल के सेशन लेकर, मेरे फ्रेंड ने बोला बाइबल रीड करने जैसी है तो करिए, तो उनके सेशन वगैरह लेकर मैंने 8 मंथ में बाइबल रीड की थी। एक फ्रेंड थी मोमेडियन, तो उसके हेल्प से उसने मुझे बोला नम्रता ये कुरान करने जैसी है। तो फर्स्ट 8 मंथ मैंने 8 to 9 मंथ उर्दू लैंग्वेज लर्न की, उसके बाद कुरान रीड की। तो मुझे लगता है 4 वेद भी किए। फिर एक इच्छा हुई कि मैं जैन हूँ, तो मुझे जैन शास्त्र का भी पढ़ाई करनी है, मुझे जैन शास्त्र को भी समझना है। तो आचार्य भगवान ने रेकमेंड किया, मुझे संस्कार निधि श्री जी महाराज साहब का ग्रुप, होपफुली रमेश भाई वो बैंगलोर से ही है, ज्यादा तो कुछ पता नहीं है, बट वो बैंगलोर से ही है, पूज्य संस्कार निधि श्री जी महाराज साहब। उनका गाइडेंस आचार्य भगवान ने बताया, उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, एंड आपको हेल्पफुल रहेंगे गुरुजी भी, आपको पढ़ाई में, अध्यात्म लेवल में जो भी आपको रुचि है वो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। और बहुत बढ़िया वैसे उन्होंने मुझे, नॉर्मली जो क्वेश्चंस रहते थे, मुझे कभी याद नहीं साध्वी जी भगवान से मैंने कोई अतिरिक्त बात की हो। मेरी इच्छा थी साहब मुझे यहाँ पे जैन धर्म की पढ़ाई करनी है, और साहिब जी भी इतने डिवोटेड थे कि परमात्मा का निस्वार्थ भाव से मुझे इतने अच्छे से वो पढ़ाते थे। तो वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि कितने जबरदस्त, बाहर में जाती हूँ ना तो समय के अनुरूप हमको पढ़ाया जाता है। साहिब जी मुझे 3 घंटे गाथा देते थे, 3 घंटे का कभी कभार अर्थ देते थे, और एक 1 आवर का रिविजन रहता था। तो मुझे लगता 7 आवर्स मेरे दे रहे। उसके बाद मैंने उनको कभी भी, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोलते नम्रता ये कैसी लाइफ है आप चूज कर रहे हो, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। मैं बोलना चाहूंगी यदि ये वेस्ट ऑफ टाइम रहता तो कोई महात्मा 4 बजे क्यों उठते और 11 बजे क्यों सोते? यदि ये इतनी नॉर्मली लाइफ रहती तो हम रोज इतने जल्दी क्यों उठते, अगर हमको फ्री रहना रहता तो? नहीं, ये जो लाइफस्टाइल है, ये लाइफस्टाइल ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, और उसी से मुझे ऐसा लगा कि संयम लेने जैसा है। और यही कॉन्सेप्ट ने मुझे, लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट ने ही प्रेरित किया एक्चुअली संयम जीवन के। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच नम्रता बहन, आपने जैनिज्म को जिस तरह आपकी लेंसेस से बताया कि आप जैनिज्म को एक जीवन जीने की कला के रूप में देखते हैं, और आपने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मार्मिक बातें जैनिज्म की बताई जो डेफिनेटली मीन्स हमारे जीवन में भी बहुत यूजफुल हो सकती है। और आपने बॉक्सिंग के करियर से आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया कि अब मुझे आगे इस करियर में नहीं बढ़ना, उसके बारे में भी आपने बताया, और जैनिज्म का वो कोर प्रिंसिपल आपने पकड़ा और आपने ये जीवन में परिवर्तन लाया। नम्रता बहन, हम और जानना चाहेंगे कि आपने गुरु का चुनाव कैसे किया, यानी संयम जीवन में गुरु का महत्व क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे मेंटोर वगैरह थे। मेरा नसीब बहुत अच्छा है एक्चुअली, मैं मेरे नसीब को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना सब जैन धर्म मिल गया, उसमें माता पिता ऐसे मिले, और बाह्य टीचर्स वगैरह, मेंटोर वगैरह मेरे इतने अच्छे थे कि सबने मुझे सपोर्ट किया है। आज तक मुझे ऐसा नहीं लगता किसी ने भी, जो भी टीचर वगैरह है, गाइड देने वाले हैं, उन्होंने निस्वार्थ भाव से दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे बेस्ट क्वालिटी गुरुजी वगैरह से, टीचर वगैरह से, मेंटोर वगैरह से ली जाती है, तो वो क्यों निस्वार्थ भाव से पढ़ाते हैं हमको।
तो गुरु कैसे सेलेक्ट किए, मैंने गुरु कैसे सेलेक्ट किए, पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगता है प्रश्न ये होना चाहिए कि एक अच्छे शिष्य कैसे बने। क्योंकि यदि आपको लाइफ में आगे बढ़ना हो, मेरा ऐसा मानना है गुरु कैसे भी रहो, चाहे स्ट्रिक्ट रहो चाहे कैसे भी रहो, यदि आपने सोचा है मुझे आगे बढ़ना है, मेरे लाइफ में एक रूल था एक्चुअली कि यदि मैं कुछ कर रही हूँ और उसमें मैं रॉन्ग होती हूँ और मुझे कोई लॉजिकली बता दे, और हाइपोथेटिकली किसी में भी जाना नहीं है, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, हर चीज में प्रैक्टिकल रहना है। तो मैंने सोचा कि क्या ऐसी चीज की जाए जिससे हर चीज प्रैक्टिकल हो। ये हमेशा मेरा मेंटेलिटी रहती थी और मेरा एक प्रिंसिपल था, जब भी मैं गलत हो जाऊं उस समय मुझे यदि कोई व्यक्ति बोल दे कि नम्रता बहन आप, नम्रता जी या नम्रता आप गलत हो, यू आर रॉन्ग, देन आई हैव टू, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताओ या सही करो, एक तो मुझे बताओ और दूसरी बात मुझे सही करो, तभी मुझे गलत बोलिए। ऐसे ही गुरुजी के साथ मेरा हुआ था। मुझे यशोनिधि जी महाराज साहब को मैंने पहली बार मिली, तब साहब जी पढ़ रहे थे कुछ, और मैंने उनको मथे वंदानी बोला, साहब जी ने आंख बंद की, एक सेकंड में धर्मलाप बोला और वापस स्टार्टेड कंटिन्यू वर्क, वो रीडिंग उनकी जो थी वो वर्क वो कर रहे थे, आई डोंट नो क्या पढ़ रहे थे, बट समथिंग पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो मुझे बुरा लग गया, उन्हें मुझे पहचानते नहीं ना, इसलिए शायद समय नहीं दिया, पहचानते होते जरूर समय देते, ट्रीटमेंट मिलती। तो मुझे हर्ट कर गई कि महात्मा ने समय नहीं दिया। और नेक्स्ट टाइम मैंने डिसाइड किया, अगर ये चातुर्मास है और पर्युषण को 3 दिन बाकी थे, अगर मैं पर्युषण में कभी इनको वंदन करने आती तो ये महात्मा को मैं कभी वंदन नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने देखा नहीं। और आज मैं बोलना चाहूंगी वो मेरे गुरुजी बन रहे। जैसे ही मैं घर पर गई, मुझे एक बात, मैंने वो मेरे थॉट को मैंने चिंतन में लिया और मैंने सोचा कि वो महात्मा ने मेरे सामने देखा क्यों नहीं, क्योंकि वो फोकस थे पढ़ाई करने के लिए। तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज थी। मैंने ऐसा सोचा कि एक व्यक्ति, मैं खुद भी यदि कोई काम कर रही हूँ और ज्यादा परिचय संसारिक जनों से, उनका व्यवहार औचित्य होता है, धर्मलाप बोलना, उन्होंने मुझे बोला, राइट, फिर मैंने अपेक्षा रखी उनसे। और दूसरी बात, मैंने जज किया। पहली बात, हमारी जनरेशन की मुझे ऐसी लगती है अच्छी बात है कि वी नेवर जज, ओके, हम जज नहीं करते। और मैंने मेरा कूलनेस मैंने मेरी खो दी, पहली बार मैंने मेरी कूलनेस खो दी, क्योंकि मैंने किसी को जज किया, वो भी एक अच्छे व्यक्ति को जज किया जो एक अच्छी लाइफ जी रहा है उनको। तो क्यों ना, उसके पीछे भी कुछ रीजन होगा ना, मतलब थिंक, आप कभी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचते। ये नेगेटिव सोच कहाँ से आ रही है एक व्यक्ति के लिए, वो भी एक अच्छे व्यक्ति जो सन्यासी है उनके लिए ऐसी सोच कैसे ला सकते हैं। सोचने पर ख्याल आया कि ये महात्मा फोकसली ध्यान से पढ़ रहे थे। मुझे लगता है ये सबसे अट्रैक्टिव चीज है कि वो व्यक्ति इतने सारे लोगों के बीच में, नॉर्मली वो एक उपासना में 4 दीवारों में होते हैं, यदि कोई व्यक्ति मिलने आया है और वो पढ़ रहा है इतने एकलीन होके कि वो सामने बात करने के लिए तैयार नहीं है, दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग थिंग, ओके, उनकी एक क्वालिटी है। नेक्स्ट डे मैं फिर वो महात्मा को मिलने, नॉर्मल दूसरे उनके गुरुजी पूज्य संस्कार निधि महाराज को मिलने गई थी। मैं वंदन करने वो टर्न हो रही थी, तो महात्मा ने मुझे आवाज दी, बहन महाराज साहब वापरने गए, गोश्री वापरने गए, तो कोई है नहीं। तो अब मैंने तो तय किया था ना ये माता को वंदन नहीं करेंगे, पर फिर सोचा एक हमारा औचित्य होता है, हमारा व्यवहार औचित्य है, हमको माता को वंदन करना है। मैंने वंदन किया और नॉर्मली साहिब जी ने मुझे एकदम स्माइल देकर, एकदम इतनी मस्त साहिब जी ने स्माइल दी। और वो स्माइल देखकर मुझे एक प्रश्न आया, महाराज साहब के पास कुछ नहीं होता है, फिर ये इतने खुश कैसे होते हैं, इनके पास तो कुछ नहीं है। एंड सडनली मैंने मथे वंदन बोल के अर्धा वंदन इचकार बोल रही हूँ, खमाशना इचकार बोलकर मैं डायरेक्ट बैठ गई। मैंने पूरा वंदन कंप्लीट ही नहीं किया, क्योंकि मेरा ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले खुद से पूछो, नहीं तो फिर मैंने पहली बार ऐसा हुआ क्वेश्चन खुद से ढूंढने की कोशिश नहीं की। वरना मैं जहां पर रहती हूँ गांव में, मुझे कोई एक्चुअली स्पेसिफिक, बचपन से ऐसा है कि कोई स्पेसिफिक आंसर देने वाला हमारे सर थे, मुझे क्वेश्चन आया तो मैं उनको पूछती थी सर, तो सर मुझे कई बार लॉजिकल आंसर देते थे, उसके बाद बोलते थे नम्रता, मेरा नेम भी उन्होंने उनके मोबाइल में क्वेश्चन मार्क से सेव कर रखा था, नम्रता आपको इतने क्वेश्चन क्यों आते हैं, मतलब सर मुझे नहीं पता, मुझे आते हैं, आंसर दो। तो सर आंसर देने की कोशिश करते थे, नहीं आया तो मुझे खुद को आंसर देना होता था। पर पहली बार ऐसा हुआ किसी पर्सन को मैंने डायरेक्टली फ्रैंकली क्वेश्चन पूछ दिया। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन साहिब जी को ये था, आधा वंदन छोड़कर मैंने उनको पहला क्वेश्चन बैठकर ये पूछा, साहिब जी आप लोगों के पास कुछ नहीं होता है फिर भी आप इतने खुश क्यों हो। तो साहिब जी बोलते हैं किसने बोला हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, और आपके पास, आपको ऐसा लगता है सब कुछ है पर आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आप साधनों के अधीन हो। तो एक साधनों के अधीन, साहिब जी बोलते हैं कोई क्वेश्चन आता है यूजुअली आपको पता नहीं हो और वर्ड का मीनिंग पता नहीं हो, तो नॉर्मली भी मुझे अभी हिंदी बोलना बहुत अच्छी आती है, लिखना नहीं आती है, आज भी हिंदी लिखना नहीं आती है, और इसके बावजूद भी साहिब जी ने मुझे संस्कृत कराई है, मेरे सच्चे उपकारी है वो बहुत ज्यादा उपकारी है। तो साहिब जी ने मुझे बताया, नम्रता
आपको यदि कोई शब्द ना समझ में आए तो आप क्या करोगे? आई सेड आई गूगल इट। तो साइड जी बोलते हैं एग्जैक्टली, हम लोगों को ना समझ में आए ना तो हम साधनों के आदी नहीं होते, हम सोचते हैं इसका अर्थ क्या होगा, पहले तो हम इस पे जोर डालते हैं, फिर उसके बाद ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप पहले वर्ड्स के लिए इस पर आदीन हुए, फिर नेक्स्ट टाइम आपको कोई लिंक आ जाए, आपको कोई दूसरा ये आ जाए तो आप नॉर्मली उस पे जाते हो, आपको कोई सजेशन आ जाए तो आप यूट्यूब पे चले जाते हो, कोई वीडियो देख लेते हो, आप जाते हो नॉलेज के लिए, फिर नॉलेज के लेते 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 आप डिस्ट्रैक्ट होकर कितना सारे, ये मुझे टच कर गई एक्चुअली। मैंने पूछा आपने कितने साल के एज में दीक्षा ली थी? एंड शी रिप्लाइड मैंने 13 इयर्स के एज में दीक्षा ली थी। अच्छा नॉलेज है साहिब जी का, आज के बारे में, जमाने के बारे में नॉलेज रखते हैं कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इस चीज से। और पहले से मैं बहुत विरोधी हूँ, मैं आज की जनरेशन की हूँ, बट मैं बहुत विरोधी हूँ इस चीज की। मैं सबसे अच्छा उपयोग इस चीज का करती हूँ। मोस्टली आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे मोस्टली आवर्स इसमें ही स्पेंड होते हैं, लेकिन मैं इसके इसलिए क्योंकि ये रिकमेंडेशन इतने बुरे देता है, डिस्ट्रैक्शन का बेस्ट सोर्स है। आजकल मोबाइल सबके पास है, लेकिन हाउ टू यूज एंड हाउ मच वी शुड यूज ये हमको नहीं बताया जाता है मोबाइल जब हमको देते हैं तब। तो मुझे ऐसा लगता है उनका बेस्ट कॉन्सेप्ट था ये डिस्ट्रैक्शन का। तो मैंने उनको पूछा साहब आप इतने खुश क्यों हो ऐसा कुछ नहीं होने पर? तो साहब जी बोलते हैं हमारे पास सब कुछ है क्योंकि हम इसको संतुलन में रखते हैं, और दूसरी बात हमारे पास एक सिद्धांत है। मैंने बोला प्लीज वुड यू लाइक प्लीज कैन यू शेयर दैट? तो साहब जी ने बोला या स्वमावस प्रतिकस एटलू बस, यानी हमने क्या खुद में ही रहते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, और दूसरी हम किसी को जज नहीं करते, बाहर की पंचायत नहीं करते, और उससे ही हम बहुत ज्यादा हैप्पीनेस खुश रहते हैं। मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पसंद आया, स्वमावस प्रतिकस एटलू बस। इतना ज्यादा उसने बोल तो इतनी ज्यादा खुशी मुझे वो सुनकर। मैंने बोला साहब जी उन्होंने जो वे से मुझे एक्सप्लेन किया था, मेरे लाइफ में मुझे लोग बोलते हैं कि आप बहुत सक्सेस अचीव करना चाहते थे, राइट? आपको सक्सेस अचीव करना था। मुझे एक प्रश्न आता है कि मैं सक्सेस क्यों अचीव करना चाहती थी? अल्टीमेट गोल क्या होता है सक्सेस का, नील भाई? हैप्पीनेस। एग्जैक्टली। और हैप्पीनेस किससे आती है? फॉर एग्जाम्पल मैं पहले बता देना चाहूंगी, मेरे पास एक ट्रॉफी थी, मुझे खुशी हुई थी, मुझे ट्रॉफी मिली, लाइक रियली ट्रॉफी मिली, इतनी ज्यादा खुश। दूसरी ट्रॉफी मिली, मेरे पास 2 ट्रॉफीज हो गई, तीसरी मिली, चौथी मिली, स्वेयर टू गॉड जब 11 ट्रॉफी मिली तो नॉर्मल लगने लगा था, और 73 ट्रॉफीज जब मेरे पास जमा हो गई थी तब मुझे वो ट्रॉफी का महत्व ही नहीं था। कितनी बार ऐसा होता था, मैं एयरपोर्ट से आती थी और मेरे पास लगेज ज्यादा हो रहा था तो मैं वो ट्रॉफी को ब्रेक करके डस्टबिन में डाल देती। एक बार मुझे किसी ने, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा आप डिप्रेशन में हो या फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, आपको क्या हुआ, आपको हेल्प चाहिए? मैंने बोला नहीं। तो आप ट्रॉफी क्यों तोड़ रहे हो, आप किसके ऊपर गुस्सा निकाल रहे हो, किसकी ट्रॉफी तोड़ रहे हो, कौन है आपके साथ? मैंने बोला मेरे साथ कोई नहीं है, और दूसरी बात ये ट्रॉफी मेरी खुद की है, शो मी योर आईडी। मैंने उनको आईडी बताई अपनी, आप नम्रता धर्मश्री ये आपकी ट्रॉफी है? मतलब हाँ मेरी ट्रॉफी है, फर्स्ट प्राइज की इतनी ब्यूटीफुल ट्रॉफी क्यों तोड़ रहे हो? मैंने बोला मेरा लगेज ज्यादा हो गया है। नहीं वो परेशान हो गए कि यार ट्रॉफी क्यों तोड़, लगेज ज्यादा हो गया और मेरे पास ऑलरेडी 73 ट्रॉफी में जमा करके रखूं क्या? आज भी सारी ट्रॉफीज मैंने मेरे घर वालों को नहीं दिए, घर वालों के पास 3-4 ट्रॉफीज है और बाकी सारी ट्रॉफीज मैंने छुपा कर, मुझे लगता है जब हमारा नाम होता है, जब हम कुछ करते हैं ना तो हमारे कार्य गौण हो जाते हैं। तो मुझे कुछ चीजें हमारी अच्छी हो, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि वो सारी चीजें मैंने हमारे जो स्टोर रूम है जहाँ पर हमारा क्रैप ऑल पड़ा होता है, मैंने उसको रैप कर कर एक बॉक्स में नॉर्मली ऐसे रखा जैसे वो कचरा है। अभी दीक्षा के बाद मैंने सोचा है दीक्षा के पहले एक दिन पहले मेरे मॉम डैड डिजर्व करते हैं ये चीज को, तो मैं उनको देकर जाऊंगी। फाइनली अब वो रख सकते हैं क्योंकि अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं देखूंगी नहीं उस चीज को। तो इम्पोर्टेंट वो नहीं होता है आप क्या अर्न कर रहे हो, इम्पोर्टेंट होता है आप जो अर्न कर रहे हो उससे आप और कौन से आगे स्टेप पर जाते हो। ये देखकर मुझे यशवंत, ये मेरे सिद्धांत है। नॉर्मली मेरे पास जो प्रिंसिपल, मुझे लोग बोलते हैं आपको सक्सेस चाहिए थी, मुझे हैप्पीनेस के लिए सक्सेस चाहिए, और हैप्पीनेस सेटिस्फेक्शन के साथ ही आता है। और सेटिस्फेक्शन, मैं एक मोबाइल लेती हूँ, नवा ब्रांड आ जाता है, मैं दूसरा लेती हूँ। पहले ब्रांडेड क्लोथ्स वगैरह यूज करती थी, लेकिन जब पहला मैंने खुद का एनजीओ खोला और पहली अर्निंग मैंने उसके अंदर दी, नॉर्मली मॉम डैड के पैसे यूज करना, फिर पहली अर्निंग एनजीओ में लगाया, तो इतनी खुशी, उस दिन से मैंने ब्रांडेड क्लोथ और स्टफ यूज करना छोड़ दिया। क्योंकि जो खुशी, ऑनेस्टली मेरा एक्सपीरियंस है, कोई भी बातें मैं आपको जो भी शेयर कर रही हूँ वो कोई बुक में या कहीं और नहीं पढ़ी है, ये मेरी पूरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा खुद का ये मापदंड है हैप्पीनेस का, कि सेटिस्फेक्शन हैप्पीनेस है। क्योंकि इतनी सारी ट्रॉफीज मिली, इतने सारे ब्रांडेड क्लोथ, इतने सारे ब्रांडेड स्टफ, आगे और की चाह में। लेकिन जब मैंने पहली बार एनजीओ मेरा खुद का ओपन किया और उसके बाद गरीबों को दान, मैंने
अपने जीवन में, खुद के जीवन में एक ऐसा पर्सन देखा जो कैनल में से बह रहा है, यानी गटर में से चावल बह रहा है और वो चावल उठा के खा रहा है, ये मैंने देखा है। उस दिन से मेरा फास्ट फूड छूट गया। 4 ईयर से मैं दाल रोटी, शाम में खिचड़ी कड़ी, मेरा 4 ईयर से ये फिक्स डाइट है, कभी भी ये नहीं हुआ। क्योंकि मुझे खाने, पहले मैं मार्गरीटा पिज्जा बहुत ज्यादा प्रेफर करती थी, उससे मेरा तबियत बहुत ज्यादा खराब हुई। तो अगर डाइट एंड न्यूट्रिशन करके क्या मतलब है जब हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उसके बेसिस पे एक थीसिस बनाई थी। वो थीसिस बनाने पर सैन फ्रांसिस्को में 3 रेस्टोरेंट ने डिसाइड किया था ये थीसिस पढ़कर कि हम कभी भी जंक फूड, फास्ट फूड सर्व नहीं करेंगे हमारे रेस्टोरेंट में। तो मुझे लगता है लोग इतना इंस्पायर और मोटिवेट हो सकते हैं, तो मुझे मेरे इसका कितना मोटिवेट होना चाहिए। उस दिन से मैंने सोचा कि, और हमारे इसमें लिखा भी है, खाना हम हेल्थ के लिए खाते हैं, ना कि इसके लिए। ये सारी चीजें सूक्ष्म रूप से समझती थी, और ये सारी चीजें मुझे लोग बोलते हैं आपने चेंज कर दिया आपका गोल, आप इतना सारे अचीव करते थे, आप और आगे बढ़ सकते हो। मैं आज भी मेरे प्रिंसिपल वही रख रही हूँ, बस मैंने जो मेरे शब्द थे, मुझे सबसे ज्यादा खुशी चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए थी। तो मुझे खुशी चाहिए, तो खुशी सेटिस्फेक्शन के साथ आती है। सेटिस्फेक्शन जब हम किसी को हर्ट नहीं करते तब ज्यादा बेटर वैसे मिलता है, और ये संयम जीवन में है। ये मैंने पूज्य यशोमती महाराज साहब के लाइफ में देखा। तो गुरु को कैसे ढूंढना चाहिए मुझे नहीं पता, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर किसी का थिंकिंग और मापदंड उनका गुरु के प्रति उनका जो रहेगा वो अलग रहेगा। मेरा ये है कि गुरु एक निस्वार्थ भाव वाले, मेरे गुरु जी निस्वार्थ भाव से है, और उनके लाइफ में जो प्रिंसिपल है, जो उनके गोल है, मैंने उनको कभी भी 4 बजे के बाद 1 मिनट भी, एक बार ऐसा हुआ साहिब जी उठे नहीं और मैं घड़ी के पास देख रही, बोला साहिब जी आज 15 मिनट लेट हो गए। मुझे इतनी ज्यादा, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट मुझे खुशी हुई। मैंने बोला साहिब जी जब उठेंगे उनको बताएंगे, साहिब जी आज आप पहली बार लाइफ में 15 मिनट लेट हो। और मैं साहिब जी उठे और मैंने साहिब जी बोला साहिब जी आप 15 मिनट लेट हो, आज 4:15 हो रहे। साहिब जी बोलते वैसे तो हम साधु जी भगवंत है, साधु साध्वी हम लोग ऐसा देते नहीं है, लेकिन आर यू श्योर 4:15 हो रहे। मैंने बोला यस साहिब जी। साहिब जी बोलते वाह पता नहीं कैसे हो गया। फिर मैंने अचानक से सोचा, मोबाइल के रीजन से मैंने हाथ ओपन किया और टाइम देखा, टाइम था 4 o'clock। लाइक अच्छा घड़ी पीछे है, साहिब जी तो राइट टाइम पे ही उठे। मेरे लाइफ में भी मैंने बोला जैसे मैंने बताया कि मुझे आगे बढ़ना है। मेरे फ्रेंड्स खेलते थे प्लेइंग पीरियड में और मैं स्टडी करती थी। मेरे फ्रेंड्स क्लब में पार्टी वगैरह करने जाते थे, मुझे बोलते नम्रता चलो ना यार, आप लाइफ को सीरियसली लेते हो। आज वही फ्रेंड बुक्स पढ़ रहे हैं और डिग्री के लिए और आगे दौड़ रहे हैं और वो इंटर्नशिप और वगैरह कर रहे हैं, और मैं आज उनकी जगह पर हूँ। मैं अर्न करती हूँ और कोई भी बुक मेरे पास नहीं होता है, मुझे जहां जाना है मैं जा सकती हूँ। यानी जो समय पर वो जो समय का है उसका सदुपयोग कैसा करना चाहिए। जो मेरे प्रिंसिपल्स और गोल थे वही सारे गोल नहीं एग्जैक्टली जो प्रिंसिपल थे वो सारे मुझे पूज्य यशोमती महाराज साहब में दिखे। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा अगर इनके निष्ठा में ये इतने परफेक्ट लाइफ जी रहे, परफेक्टली उनके प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे। लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्यों बनाने चाहिए, यदि आप प्रिंसिपल बनाओगे और उसको डिसिप्लिनली फॉलो करोगे तभी आप सक्सेस अचीव कर जाओगे। चाहे वो बाह्य क्षेत्र हो, व्यवहार का क्षेत्र हो, चाहे हमारा क्षेत्र हो, या चाहे संयम का क्षेत्र या मोक्ष का क्षेत्र हो। आप जब भी लक्ष्य निश्चित करते हो आपको उसके लिए मेहनत करनी ही होगी। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आपको गोल आपको प्राप्त करना है तो मेहनत करिए, या फिर खाली इमेजिनेशन कर आप खाली वो ख्याली पुलाव बनाकर उस लाइफ को ड्रीम से एंजॉय करिए, ड्रीम्स देखकर। वैसा मुझे करना नहीं था तो मैं उसके आगे बढ़ी। तो मुझे ऐसा लगता है गुरु कैसे होने चाहिए कि आप खुद ही गुरु कैसे मैंने चुने, कैसे होने चाहिए बिछान गुरु, मैंने गुरु कैसे चुने इस बेसिस पे मैंने बहुत सारी चीजें उनकी देखी है। नम्रता नाम मेरा है, लेकिन जब से पूज्य यशोमती महाराज साहब मेरे जीवन में आए हैं तब से मेरे नाम के गुण मेरे जीवन में आए। फ्रैंकली स्पीकिंग 17 ईयर्स तक मेरे पास नम्रता नाम था, लेकिन उसका 1% भी मेरे पास गुण नहीं था। मुझे एक्चुअली गॉड गिफ्टेड लॉजिक बहुत ज्यादा यूज होता है। लोग बोलते हैं आप इतने लॉजिकल हो, इतने प्रैक्टिकल सोचते हो, दीक्षा क्यों ले रहे हो। मैं बोलती हूँ एक भी इलॉजिकल और जो प्रैक्टिकल चीज नहीं है, हाइपोथेटिकल एक भी चीज मुझे बता दो, आप जो बोलो वो करने को। मेरे 2 ईयर्स यूजुअली 6 ईयर्स से भाव था कि दीक्षा अच्छी है। 2 ईयर्स से फिक्स किया है कि मुझे दीक्षा लेनी है, और मेरे मेंटर को मैंने ओपन चैलेंज दिया है कि जिस भी व्यक्ति ने मुझे बता दिया कि दीक्षा प्रैक्टिकल नहीं है और इलॉजिकल है, मुझे बता दिया 2 साल के अंदर अंदर मैं दीक्षा का मुहूर्त निकल गया है, दीक्षा के दिन तक मुझे कोई साबित कर दे, मैं दीक्षा कैंसिल कर दूंगी। ये मेरा ओपन चैलेंज है। आज तक मेरे पास समझ लो ना 43 जितने मेरे बेस्ट मेंटोर है, सबने अपना बेस्ट ट्राई किया है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं मेरे बेस्ट स्टूडेंट है, इनको हम खो नहीं सकते। उनको ऐसा है कि हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बोला ऐसा नहीं है, आप कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, आप हमेशा मेरे लिए विशेष रहोगे और उसी स्थान पर रहोगे। तो बोलते नम्रता हम कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप चले जाओगे। तो उन्होंने उनका यथार्थ प्रयत्न किया कि वो मुझे रोक पाए, लेकिन परमात्मा के वचन और परमात्मा का लॉजिक इतना जबरदस्त शास्त्र वचन है कि उन्होंने कभी हारने ही नहीं दिया।
क्योंकि लॉजिक राइट है। जैसे बोलते हैं ना, मेरे फ्रेंड्स पार्टी वगैरह करते थे और एट द एंड उनका नतीजा उनको मिलता था, आज मैंने पार्टी वार्टी नहीं की और उसका नतीजा मैं सामने खुद हूँ। बस वैसे ही लॉजिक ये होता है, आपको हार्डवर्क करना ही होगा, आपको सक्सेस चाहिए तो बस इसी बेसिस पे मैंने मेरे गुरुजी सेलेक्ट किए। अमेजिंग अमेजिंग, एक्चुअली मीन्स ये सब सुन के इतना अच्छा लग रहा है नम्रता बहन। मैंने बीच में 2 मिनट के लिए नेटवर्क लूज कर दिया था। मुझे ऐसे लग रहा है कि इतना मीन्स वो क्या बोलते हैं, इतना ऐसे लग रहा था कि मैं 2 मिनट का कॉन्वर्सेशन मिस कर दूंगा, ऐसा फील हो रहा था। इतना सुंदर आपने बताया गुरु के बारे में, गुरु कैसे होने चाहिए, आपकी जो क्लैरिटी है वो जान के बहुत खुशी हो रही है और हमें भी अलग अलग पर्सपेक्टिव मिल। जी मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने दीक्षा लेने का ठाना, तो आपके इस डिसीजन के अंदर आपने आपके माता पिता भाइयों को कैसे कन्विंस किया? एक्चुअली जब मुझे सैन फ्रांसिस्को में जाना था तो मॉम डैड को बताने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने मेरे भाई को बताया जो मेरे से 1 साल छोटा है। मतलब भाई मुझे सैन फ्रांसिस्को जाना है, मॉम डैड से परमिशन लेनी नहीं है, क्या करूं? नम्रता आप यार हमेशा ऐसा ही करते हो, परमिशन लेते नहीं हो, मुझे हेल्प करने बोल देते हो, मैं मना नहीं कर पाता हूँ भाई हूँ इसलिए। मतलब भाई प्लीज इतनी बार एक कर दो ना, हेल्प कर दो ना। ओके मेरी फीस है, पापा ने भेजी है कल ही, आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, कर लो जो करना है। थैंक यू भैया, मैं चले गई। तो परमिशन जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताना चाहूंगी, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ परमिशन मत लीजिए, मैं जो भी आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट व्हाट आई हैव डन, मैं उसके प्राउड नहीं फील करती जो मैंने चीजें की है, गलत है, आपको बताना चाहिए। क्योंकि जो माँ बाप ने आपकी इतनी केयर की और वो केयर ही चाहते हैं, वो सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए आपके चिंतित होते हैं, उसके अतिरिक्त उनको ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे बच्चे आगे ना बढ़े। कोई भी माता पिता को ऐसे नहीं होता है, एक होता है राग दशा और एक होती है उनका जो एक बोलते हैं ना हमारे बच्चे की केयर नहीं यार, उनका केयर करनी पड़ेगी, नहीं उनको कुछ ना हो जाए, बस वो 1-2 भाव होते हैं उनके मन में, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। तो माँ बाप ने आपको परमिशन, एक्चुअली मैंने आज तक कोई चीज में परमिशन ली नहीं है, मेहनत की है। मुझे ऐसा लगता है परमिशन लेनी है तो मैं पहले नॉर्मली मैंने एडमिशन ले लिया, उसके बाद परमिशन दी, मॉम डैड प्लीज परमिशन दे दो। मॉम डैड बोलते हैं बेटा आपको एडमिशन वगैरह हो गए। मॉम डैड एक्चुअली डैड को तो नहीं पर मम्मी को सूक्ष्म रूप से अंदाज था, डैड को बताने की हिम्मत नहीं थी, फाइनली अभी बताया कि डैड ऐसा ट्रॉफी वॉफी दिखी है बाहर, उन्होंने मेरे एक्चुअली सर्टिफिकेट डिग्री वगैरह हाथ में आई, तो सब पता चल जाता है बाद में। अभी दीक्षा ले रहे इसलिए मैंने छुपाया भी नहीं। डैड सपोर्ट नहीं करना चाहते ऐसा नहीं है, लेकिन बस एक चिंता। उसी तरह संयम जीवन हम जब लेने जाते हैं कोई भी चीज, मैंने एक बात सीखी मेरी लाइफ से, पहली बात ये गलत है, आप मुझे जो भी सुन रहे हैं इससे गलत आलम्बन मत लीजिए, लेकिन एक आलम्बन लीजिए, आपको यदि सच में सक्सेस चाहिए और आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी होगी। अब मैंने मेरा इससे कैसे अनुमति ली, परमिशन ली, वो मैं आपको शेयर करूं तो वो मेरी लाइफ स्टोरी है, वो सेम दैट ना दैट वोंट हेल्प यू, ओके, वो आपको हेल्प नहीं करेगी स्पेसिफिक स्टोरी मेरी, लेकिन फिर भी मैं आपको मेरा एक वे बताऊंगी। मैंने मेरे मॉम जैसे पहली बार मेरे मॉम को बोला मम्मी मुझे दीक्षा लेनी है, मेरी मम्मी रोज मुझे 25-30 आइटम बना के खिलाती है, नाचोस खिलाती है, लजानिया खिलाती है, किमची खिलाती है, जो मम्मी को नहीं आता है, लेकिन बेस्ट फूड हिंदी वेजिटेरियन बनाकर उसको जैनिज्म मतलब जैन वे के हिसाब से वो प्रिपेयर करती है, मुझे खिलाती है। वो मम्मी ने, मैंने जब भी ऐसा बात किया कि मम्मी मुझे दीक्षा लेनी है, उन्होंने नमक मुझे खान था बोले बेटा खाना खाने आ जाओ, सुबह बोला था, दोपहर में बोलते बेटा खाना खाने आ जाओ, मुझे ब्रेकफास्ट भी दिया नहीं, दोपहर में खाना खाने गई और उसमें नमक नहीं था एक्चुअली। टेस्ट के तो स्वाभाविक बात है, मैं इंसान, मुझे पता चलेगा ही, मैं दीक्षा लेती हूँ, मुझे दीक्षा के भाव, बट टेस्ट तो पता चलेगा, नमक नहीं है। मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैंने ऐसे लोग नॉर्मली मैंने ऐसे लोग देखे जिनको खाना नहीं मिलता है, तो मुझे दाल रोटी मिल रही है इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे वो कम लगता ही नहीं है, नमक रहो या ना रहो, उसके अंदर हल्दी नमक राई जीरा कुछ रहो या ना रहो, वो मुझे खाना मिल रहा है, मुझे वो बहुत बड़ी बात है, मेरे मेंटेलिटी है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ा मम्मी ने नमक डाला या नहीं। नेक्स्ट डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ तक नमक डाला ही नहीं मम्मी ने, जब पहली बार बोला मुझे दीक्षा लेनी है। प्रेम उनको ऐसा था कि जिस दिन मेरी बेटी नॉर्मली इतना सब किया है तो मेरी मम्मी को ऐसा लगा ना ये जरूर बोलेगी क्योंकि मुझे खाना बहुत परफेक्ट चाहिए, ऐसा तो कभी तो बोलेगी, कभी तो मुझे नॉर्मली मम्मी इतना सारा खाना बनाती है लेकिन मैं दाल रोटी खाती हूँ रोज, वो इतना अच्छा बनाती है, उनको ऐसा लगता है मेरी बेटी को आज तो मन होगा, आज तो मन होगा, लेकिन मैं बोलती हूँ मम्मी आप देखो आप कर रहे हो, मेहनत कर रही है, लेकिन मुझे नहीं होगा मन। तो लोग बोलते हैं आप मम्मी को हर्ट कर रहे हो क्या? नहीं, मम्मी जो भी बनाती है, मेरे 2 भाई है उनको दे आर फूडी टू, उनकी मजा हो जाती है, तो मैं उनको हर्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये मेरा। और अनहेल्दी सच बताऊं तो वो गैस वैस करेगी, वो सारी चीजें, मैंने डाइट एंड न्यूट्रिशन कोर्स किया है, तो जो प्रोसेस फूड होता है वैसे भी अनहेल्दी होता है, तो आप लॉजिक लगाओ ही मत, हर्ट नहीं किया होगा, मैं हेल्प करती हूँ मम्मी को खुद को,
मैंने इतनी सारी स्टडी वगैरह बाहर की है, लेकिन मुझे खाना बनाना भी, मैं ट्राई करती हूँ मम्मी को कभी कभार हेल्प कर दूं। तो मम्मी ने दाल रोटी में नमक नहीं डाला। फिर मम्मी, एक बार डैड ने खाना खाया, डैड बोलते इसमें नमक नहीं है, तो मम्मी बोलती नहीं वो नम्रता की थाली है। तो डैड बोलते नम्रता की थाली, तो नमक नहीं डालोगे क्या मेरी बेटी की थाली में? नमक उसको अलग से दाल बना के देते हो क्या? मम्मी ने बोली हाँ, मैं नम्रता नमक खाना बंद कर दिया है। खुद पे नहीं डाला, नम्रता ने नमक खाना बंद कर दिया है, क्योंकि एक बार दिया तो उसने कुछ बोला नहीं, दूसरी बार दिया तो कुछ बोला नहीं, 6 महीने से दे रही हूँ कुछ बोल नहीं रही, तो मैं हटक से उसको नमक नहीं दे रही। तो डैड बोलते मेरे 2 बेटे भी वही खाएंगे और मैं भी वही खाऊंगा, जब मेरी बेटी ये खा रही है तो हम चारों जन यही खाएंगे। तो उस दिन से मम्मी बोलती नहीं नहीं इसमें नमक डाल के देती हूँ उसको, और उस दिन से फाइनली मम्मी ने मुझे सॉल्ट डालकर उसमें दिया। यानी कहने की बात ये कि वो चाहती थी, फिर उन्होंने मुझे बताया, बुलाया और बोला नम्रता 6 महीने से मैं थक गई हूँ आपसे, मैं रोज सोचती हूँ आज बोलेंगे आप, आज बोलेंगे, आज बोलेंगे, आप बोलते क्यों नहीं हो? बोला मम्मी आई एम रियली थैंकफुल, आप मुझे खाना दे रही हो, एक तो आप मेरे लिए इतना सारा मेहनत कर रही हो, खाना बना रही हो, इतना अच्छा फूड बना रही हो, और उसमें मैं आपकी कमियां निकालू आपकी बेटी होकर, ये तो सही बात नहीं है ना मम्मी, ये तो गलत है। फिर मैंने क्या किया वहां पर महाराज साहब के पास पढ़ाई करके, मैंने किया क्या? तो मेरी लाइफ से मैंने क्या एक्सपीरियंस किया? लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, मुझे खाना मिल रहा है पहली बात तो, और दूसरी बात महाराज साहब के पास से मैंने रहकर यही सीखा है कि खाना जो आवश्यकता है वो उससे पूरी हो रही है। टेस्ट नहीं मिल रहा है और टेस्ट नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं है, मैं मेरा टेस्ट पे कर ले रही हूँ, ऐसा नहीं है कि खाली टेस्ट, मैं सोच रही हूँ कि फूड टेस्टी है और मेरे लिए टेस्टी है मॉम। मेरी मम्मी हाँ ठीक है, तब मम्मी को ऐसा लगा नहीं मेरी बेटी एक्चुअली वो वे में यानी वो कर रही है प्रैक्टिस। तो ये एक छोटा सा दृष्टांत था, ये कोई हाई लेवल का मेरी परीक्षा नहीं थी, मेरे मॉम ने ली हुई, नॉर्मल थी, उन्होंने परीक्षा ली। तो ऐसी अनेक परीक्षाएं आती है, आपको मना किया जाता है, आपको इमोशनली। अच्छा मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे बोलती है नम्रता, कल्याण भूमि में भी मेरे फ्रेंड साथ में थे, उन्होंने मुझे बताया नम्रता मॉम डैड हमेशा मॉम डैड तो नहीं लेकिन हमेशा दूसरे लोग मुझे पूछते मॉम डैड को रुला कर दीक्षा लेना सही है क्या? तो मुझे उसी बहन ने बताया जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई तो मेरे पापा इतना रो रहे थे, ऐसा हाथ पे हाथ रख के जोर जोर से, उनको सांस नहीं ले जा रही थी, इतना रो रहे थे। तो तब मैंने बोला पापा शादी नहीं करवानी है बहन की तो मत कराओ ना, लेकिन इतना रो मत। तो पापा बोलते बेटा ऐसा नहीं होता है। फाइनली वो फ्रेंड मेरी सबको ऐसा जवाब देती है, आप ऐसा मत सोचिए कि हम दीक्षा ले रहे हैं तभी हमारे माँ बाप हम छोड़ के जा रहे हैं, वो लगेगा ना, वो इतने साल हमारे साथ रहे हैं तो वो फील तो होगा, मैं इसलिए रोते। फिर कई लोग एक नॉर्मली, सॉरी आपका प्रश्न होना चाहिए था लेकिन अब मैं मेरा ही प्रश्न लेना चाहूंगी, क्योंकि जो मेरे प्रश्न आते हैं उसका उत्तर तो मुझे लगता है सबको हेल्पफुल रहेंगे। मुझे प्रश्न आया था कि मैं जब दीक्षा की ट्रेनिंग करी तो मुझे लगता है संसार जीवन में भी रहकर, उल्टा संसार जीवन में रहकर साधना अच्छे से की जाती है। आपका क्या मानना है नील भाई? 100% नहीं, राइट? क्योंकि आपने थोड़ा बहुत, हाँ तो पहले पर मेरा ऐसा मानना था संसार जीवन में रहकर साधना और मोक्ष के प्रति आप जल्दी फास्ट जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप एक रूम में बैठोगे, आप एक रूम में बैठो, ध्यान चिंतन वगैरह करो, मास्टर बनोगे, परिचय बढ़ेगा और ज्यादा कांटेक्ट होगे, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन का सोर्स नहीं बन जाएगा क्या? आपको धर्म ही करना है, आपको वही राह चुननी है, मुमुक्षु ही बनना है, तो क्यों ना घर पर भी रहकर किया जा सकता है ना। और मेरी मम्मी मुझे यही प्रश्न पूछती थी, तो मेरे मन में भी स्वाभाविक ये प्रश्न मम्मी के प्रश्न से मेरे दिमाग में आ गया। अब ये प्रश्न मुझे आया है तो उत्तर देने वाले गुरुजी तो थे नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि वो मोबाइल यूज नहीं करते। अगर वो करते तो मैं पूछ लेती फोन करके साहिब जी ऐसा कैसा, लेकिन वो मोबाइल यूज करते नहीं, बुक्स में कहीं मुझे अभी मिलेगा नहीं फिलहाल ये आंसर, तो पूछू किससे? अब प्रश्न मुझे आया तो कहीं ना कहीं उत्तर मैं ढूंढ सकती हूँ, चिंतन करूँ, तो मैं सोचने लग गई इसका आंसर मैं खुद को क्या दूं, खुद को क्या दूं, खुद को क्या दूं। फिर अचानक से समझ में आया, हाँ नॉर्मली मैं ट्रैवलिंग बहुत की है, तो मुझे मुंबई जाना है, मैं अंबड़ रहती हूँ, अंबड़ से जालना, जालना से औरंगाबाद, औरंगाबाद से धुलिया, फिर वापस ऐसा वे नासिक, वो सब करके मुंबई पहुंचू, वो अच्छा है कि डायरेक्ट मुंबई पहुंचू क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन तय हो चुका है? क्या रहेगा नील भाई? ऑफ कोर्स डायरेक्ट प्रेफर करेंगे। ओके, और मैं लड़की हूँ, नॉर्मली आप लड़कियों के बारे में ऐसा बोलते हैं ना, नहीं ज्यादा ये रहता है वहां पे रिस्की है, तो मैं डायरेक्ट जाऊँ यहाँ से वो रिस्की है, या मैं अलग 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 चेंज करके जाऊँ और मुझे मिले ना मिले वो रिस्की है? ऑफ कोर्स अलग अलग जगह होके जाओ वो रिस्की है। तो अगर मैंने डेस्टिनेशन मेरा माइंड में फिक्स कर ही लिया है, मेरा गोल वही है, तो क्यों ना। और डिस्ट्रैक्शन, रही बात यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन, आप आइसोलेट करके ध्यान कर रहे हो, फिर वो क्या भैया, फिर आप तो नॉर्मली खुद से खुद के कर्म के सामने आप खड़े हो ही नहीं रहे हो। मैंने एक कविता लिखी है, अगर मेरा इनविटेशन कार्ड किसी के पास गया हो, मोस्टली सबके पास पीडीएफ है, तो उसमें एक उलझी थी दुनिया में मैंने एक मेरे मुहूर्त के दिन कविता बनाई है जिसमें पूरा मेरी पूरी लाइफ स्टोरी इंक्लूड की है, और उसमें बताया है कि कर्म के सामने हम जा रहे हैं सामने से रहकर,
उसमें एक्चुअली चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस ये नहीं कि मैं घर पर बैठ के ध्यान करूं, वो चैलेंज नहीं हुआ फिर, और मुझे बढ़ना है आगे तो मैं कंटिन्यू उसी वे में जाना है ना, तो मैं डायरेक्ट मुंबई की जैसी फ्लाइट, औरंगाबाद से मुंबई की फ्लाइट या ट्रेन या लग्जरी वॉल्वो प्रीफर करूंगी डायरेक्ट वाली। बस उसी तरह मुझे अगर वहां पर ही जाना है तो घर पर रहूं, श्रावक जीवन अपनाऊं, मैं वो दिनचर्या फॉलो करूं, कभी किसी को उचित लगे ना लगे, क्यों ना मैं एक ऐसे माहौल में रहूं जिनका गोल भी यही है। अगर हमको आगे बढ़ना हो तो हमारे एक मेंटोर थे, मुझे वो बोलते थे, नम्रता यदि आपको आगे बढ़ना है तो डिसिप्लिन और जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं उनके संगत में रहिए, आप आगे ज्यादा बढ़ोगे। जो ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड है, आप उनके साथ बैठोगे तो आप उनको समझाओगे, करोगे, और कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्शन आप में भी आ जाएगा। एक मेंटोर ने ये बात बताई थी, वो बात मेरे ध्यान में आई। जैसे आगे बढ़ना हो तो आपको डायरेक्ट ट्रेन लेनी है, वैसे ही आगे बढ़ना है तो आपको वो संग लेना है। उसी तरह से हमको जाना ही मुमुक्षु है, मोक्ष मार्ग हमने सोच ही लिया है वो रास्ता, तो क्यों ना मैं वही माहौल में रहूं जहाँ पे वो लोग सेम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है घर पे रहना और वहां पर रहने में डिफरेंस क्या है। घर पे आप अटक अटक के जाओगे और वहां पर आप डायरेक्ट जाओगे, जल्दी है वो बात नहीं है, एक बार आपने गोल तय ही कर लिया, इतनी भी क्या जल्दी है फिर मोक्ष में जाने की। तो अभी तो हमको मोक्ष मिलने वाला इस भाव में नहीं है, तो फिर आप वाकई प्रैक्टिस क्यों करते हो। मेरी मम्मी ने बोला अभी तो मोक्ष इस भाव में नहीं मिलेगा तो प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो। मैंने उनको आंसर बताया, इस भाव में मोक्ष मिले। अच्छा, मैं अभी बच्ची हूँ और मैंने आपको पूछा मॉम मुझे 1 करोड़ रुपीज अपनाने हो, शायद फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1000 रुपए भी नहीं है, इतनी हमारी कंडीशन ऐसी है, और 1 करोड़ रुपए कमाने हो, तो आप आपकी बच्ची को क्या बोलोगे। तो मम्मी बोलती है मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप नहीं कमा सकते, मैं ऑब्वियसली उसको एनकरेज करूंगी, बेटा यू कैन ट्राई, गिव अ ट्राई। मतलब एग्जैक्टली मोक्ष मिले या ना मिले, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन का और सबसे किसी को हर्ट ना करना, ये 5 प्रिंसिपल है, कितने जबरदस्त 5 महाव्रत कितने बढ़िया है। तो आपको नहीं लगता ये इसमें फॉलो ना करके कोई भी गलत बात नहीं है, और उसी के वे में आगे बढ़ना है, तो इसमें गलत क्या है। और आप मुझे मोक्ष मिले ना मिले, आप उसका क्यों, आप मुझे प्रोत्साहन देना चाहिए ना, आपने बोला मुझे 1 करोड़ के लिए। तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नम्रता आप इतनी सारी पढ़ाई क्यों करते हैं, पहली बात आप दीक्षा क्यों ले रहे हैं। मेरा आंसर ये रहेगा, मेरा ऐसा मानना था फ्यूचर सिक्योर करना हमारी काम है, फ्यूचर सिक्योर करना मेरा फ्यूचर है, मेरी लाइफ है, तो मुझे फ्यूचर सिक्योर करना होगा। मुझे ऐसा लगता है जब मैं मेरे फ्यूचर के बारे में इतना सोच रही हूँ तो मनुष्य भाव पाकर मैंने भव का फ्यूचर प्लान करने के लिए मनुष्य भाव लिया, उसका क्या, ये पहला क्वेश्चन आया था, उससे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल नम्रता जी, बहुत ही इंस्पायरिंग है ये। नम्रता जी, बहुत सारे प्रश्न हैं और श्रोताओं के पास से भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं क्विकली प्रश्न लेना चाहूंगा क्योंकि हमें आपको सुनना है आज और बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करना है। सो नम्रता जी, एक प्रश्न ये है कि आज की युवा अगर हम देखते हैं तो सोशल मीडिया के वर्ल्ड में इतने सारे कनेक्टेड है, ये सब मोबाइल डिजिटल गैजेट्स, आपको नहीं लगता इट विल बी वेरी डिफिकल्ट आफ्टर टेकिंग दीक्षा ये सब छोड़ना। ओके, ये सब छोड़ना, सच बताओ ना, आज के जमाने में डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, मैं मेरे भाई का, मेरा रियल ब्रदर है, वो मॉर्निंग में सुबह उठता है, नौकरसी का पचकान ऐसा लेता है। नम्रता इतना आलस, उसको नौकरसी का पचकान आता है, नम्रता पचकान। अरे भैया आपको आता है, आप खुद से ले लीजिए ना। नहीं नम्रता पचकान दे दो, मैं नींद में हूँ। ठीक है, पचकान दे दिया, पानी पिएगा, ब्रेकफास्ट करेगा, फिर पहले उसका सोशल मीडिया जो भी हैंडल्स है वो उसको चेक करेगा, बाद में पूजा करने जाएगा। हाँ ये बात अच्छी है, कुछ बातें उसकी भले उसको बिलीव है या नहीं, लेकिन पप्पा को पसंद है इसलिए वो करता है। मुझे ऐसा लगता है ये भी सफल है। डैड को पसंद है इसलिए वो पूजा करने जाता है, क्योंकि डैड ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, उनकी एक ही इच्छा है मैं पूजा करूँ, तो क्यों नहीं कर सकता। तो उस बहाने पूजा करने जाता है, आता है, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखता है, बाद में वापस खाना खाता है, वापस बैठता है, हॉटस्टार पे मैच देखता है, बाद में खाना खाता है, वापस मील मतलब नाश्ता स्नैक्स खाता है, बाद में नेटफ्लिक्स देखता है, बाद में खाना इवनिंग का खाना खाता है और हॉटस्टार पे मैच देखता है और ड्रीम 11 खेलता है। बाद में रात होती है, पापा बोलते हैं बेटा आप प्रतिक्रमण करा दो। हाँ पापा, खुद के लिए प्रतिक्रमण लर्न नहीं किया, पापा को वंदितु नहीं आता है तो खुद जाएगा पापा को प्रतिक्रमण कराएगा। वो बोलता है ना डैड ने मुझे इतना कुछ दिया है, उसके सामने मैंने उनको कुछ दे पाऊँ या कभी कुछ दूं या दे पाऊँ, इतनी भी मेरी ये नहीं है, लेकिन इतना उनको वो चाहते हैं मैं पूजा करूँ, प्रतिक्रमण उनको कराऊं शाम का, तो करा देता है। नेगेटिव पॉइंट इतने सारे, प्लस पॉइंट भी आपको बता रही हूँ उसके, क्योंकि उसको नेगेटिव पॉइंट भी बता रही हूँ। अच्छा, और वही जगह पर मेरी मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, पहली बात तो किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मेरा खुद का सगा भाई है और शायद वो भी सुन रहा होगा, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये लाइव राइट एग्जांपल दे रही हूँ, इसलिए उसके साथ एग्जांपल दे रही हूँ, आप डिसाइड कर सको इसलिए। मैं उठती हूँ, उठकर पहले प्रतिक्रमण वगैरह, परमात्मा भक्ति, ब्रश, वर्कआउट, वापस मेरा जो एक लिक्विड वगैरह मैं नॉर्मली वापस, बाद में पढ़ाई वगैरह करती हूँ थोड़ी सी,
फिर बाद में रिवीजन करती हूँ, मम्मी पापा के पास जाने का, थोड़ा बहुत मस्ती वगैरह की, क्योंकि उनको भी ऐसा लगे कि हमसे बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हम अभी तक हमको जब जरूरत थी तब हमने उनका यूज किया और बाद में आप कौन और मैं कौन, कितनी बार मैंने ऐसा देखा हो जाता है हमारे घर पे भी भैया के द्वारा। मैं सोचा नहीं, चलो उनसे मस्ती वगैरह करके आते, थोड़ी मस्ती वगैरह की, वापस पढ़ाई किया, कुछ काम था वो किए। अच्छा मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करती हूँ ऐसा नहीं है, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है। लोग बोलते हैं बहुत बोरिंग है, ओके बहुत बोरिंग है, लेकिन आज मैं जितने घंटे चाहूँ मैं मोबाइल यूज कर सकती हूँ, जितना टाइम चाहूँ उतना। क्यों? क्योंकि पहले मैंने उतना खुद के उसको मोल्ड किया है। तो एक बात आप समझ लीजिए, आपके पास ये दोनों उदाहरण है, और पहला आपको नेटफ्लिक्स वाला बहुत मजा आएगा क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन है, मजा है, ठीक है। यदि ये सेटिस्फेक्शन और मजा देने वाला है तो आगे इसके परिणाम क्या आएंगे आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। तो बिल्कुल यदि आपको सोशल मीडिया हार्ड जा रहा है और आपको मोटिवेशन चाहिए ना, तो मैं यही बोलूंगी खुद के लाइफ को ध्यान दीजिए। क्या होता है ना, हमको कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं भय के कारण, डर के कारण। नहीं यार ज्यादा सोच रहा हूँ, मुझे टेंशन आ रहा है, छोड़ो, इसलिए वापस मोबाइल यूज करने बैठ जाते हैं। फ्यूचर का सोचते हैं, डर लगता है, मोबाइल यूज करता हूँ मैं, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्या होगा मेरा, वापस मोबाइल यूज कर लेते हैं। मुझे वो मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, ये थॉट आने के बाद वापस डर लग रहा है और मैं ज्यादा ना सोचूं और मुझे ये हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन बोलते हो, अंदर से कुछ हो रहा है, तो मैं वापस मोबाइल यूज करने। तो ये लॉजिक बैठता है मन में। यही यदि आपको मोटिवेशन चाहिए तो खुद को ही ऑब्जर्व करिए, डरिए मत, उसका रीजन उसको पता करिए कि आप जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हो ना। अच्छा मेरे इंस्टाग्राम चेक करिएगा, आपको पता होगा एक भी फ्रेंड इंस्टाग्राम पर, एक भी मेरे फॉलोइंग में ऐसा फ्रेंड नहीं जिसको मैं पर्सनली नहीं पहचानती हूँ। और दूसरी बात, मैं मोस्टली लोगों को फॉलो नहीं करती हूँ। फॉलो इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि हम जब किसी को फॉलो करते हैं तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो पोस्ट करते हैं और वो हमको दिखता है। पहली बात, उनके लाइफ में क्या चल रहा है मैं डायरेक्ट उनको फोन करके पूछ लेती हूँ, भाई आपके लाइफ अगर जानने की इतनी क्यूरियोसिटी रही तो मैं उनको फोन, भाई कैसे हो, बहन कैसी है, हाउ आर यू, व्हाटएवर, गॉसिप चिट-चैट जो भी करनी है फोन पे कर लो। और उनकी लाइफस्टाइल देखकर मैं क्या करूँ? आपको कंपेयर, आज लोग बोलते हैं ना कंपेयर मत करिए, अभी मम्मी बोलती है बेटा उनके जैसा बनो, तो आप बोलते कंपेयर मत करिए, ओके। तो आप क्या कर रहे हो फिर सोशल मीडिया पे? आप सारा ये जो खेल है ना, आप समझ लीजिए सोशल मीडिया का। एक बात, आप आराम से बैठिए, आप बोल रहे हो ना सोशल मीडिया के कैसा जियो आप, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं नम्रता आपको ऐसा लगता है जैन धर्म पे, जैन धर्म को इससे स्प्रेड कर सकते हैं हम इससे? मुझे ऐसा लगता है जैन धर्म को स्प्रेड, पहली बात तो मैं इतना फॉरेन में रही हूँ, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, वो सारे फ्रेंड जितने भी है, मुझे नॉर्मली स्नीज नमोरी हंताड़म निकल जाता है मुंह में से। तो बोलते हैं नम्रता ये क्या है? मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ, जो भगवान को नमस्कार नहीं है, जो राग और द्वेष से रहित है उसको नमस्कार है, उनको वो डाउन। तो बोलते हैं वाओ दैट्स अमेजिंग, इसमें तो सब आ गए ना। बोला हाँ, वो लॉजिक लगाते हैं, इसमें तो सारे भगवान सब आ गए ना, भगवान साधु संत जो भी राग द्वेष से रहित थे वो सब आ गए, उनको नमस्कार हो रहा है। बहुत अच्छी बात है ना, अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिर मैं उनको पूरा नवकार मंत्र का अर्थ बताती हूँ। बोलते हैं नम्रता क्या हम लर्न कर सकते हैं? पहली बात, उनको प्रोनाउंसिएशन जमता ही नहीं है, बहुत हार्ड होता है उनके लिए प्रोनाउंस करना, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। फिर वो सीखते हैं, उसके अंदर डीप डाउन जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जब आप अच्छे रहोगे, जब आप उस माहौल में, पहली बात नहीं क्या ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है मोटिवेशन नहीं मिल रहा तो माहौल वैसा चूज करिए आपके लिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद की लाइफ ऑब्जर्व करिए। और बोलते रही बात धर्म के प्रचार की, हमारे साहब ने, हमने इतना सब संसार छोड़ा और उसके बाद भी आप ही खुद बता दीजिए ना, आपके पास ये मोबाइल है, आप इतना सब काम कर रहे हो, तो आप इसका बेस्ट यूज कर रहे हो या इसका वर्स्ट यूज कर रहे हो? इसका आप 1% नहीं, आप 10% नहीं, इसका 1% भी अच्छा यूज करने लग जाओ ना, उसके बाद मानस को ये सारी दलीलें लगाना, उसके पहले तो लगाना ही मत। जब आप इसको झेल नहीं पा रहे हो तो, अच्छा पहले जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तब नॉलेजेबल, रमेश भाई आपसे एक प्रश्न पूछना है फाइनली। प्लीज। हाँ, मैं आपको पर्सनली नहीं पहचानती हूँ, बट जब आप छोटे थे तब ये टेक्नोलॉजी वगैरह थी, सोशल मीडिया वगैरह था? डेफिनेटली। ओके, तब आप नॉलेज प्राप्त मुझे ये बता दीजिए, आपका, मुझे नहीं पता, आपका ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन है? ग्रैंडसन। ओके, मुझे बताइए, क्या फ्रैंकली सच सच बताइएगा, उनके पास नॉलेज ज्यादा है या आपके पास नॉलेज ज्यादा है? एज डिफरेंस होगी बट उस आप कंपेयर करो, आपके जमाने में, आपके एज, जब आप उनके एज के थे तब आपके पास नॉलेज ज्यादा था, क्यूरियोसिटी ज्यादा थी, या और उत्साह आपके पास ज्यादा था या उनके पास ज्यादा है? फ्रैंकली मुझे इसका राइट आंसर दीजिएगा। I mean, it is tough to say. मैं ये कह सकता हूँ कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है, हम बहुत छोटे गांव में बड़े थे। बस मेरा भी यही कहना, मुझे उत्तर मिल गया। हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, उनके पास नहीं थी, फिर भी उन्होंने क्रिएट की
और उसको वो कैसे उसको लाकर वो नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, ये एक उनके अंदर जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी थी। आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है और हमारे पास क्यूरियोसिटी बिल्कुल नहीं है। तो मुझे जब लोग बोलते हैं ना इसका बहुत अच्छा यूज हो सकता है, तो मैं उनको बोलना चाहूंगी जब ये नहीं थी ना, जब ये नहीं था ना, तभी चाणक्य क्या है, जब ये नहीं था ना, तभी नरेंद्र मोदी जैसे इंटेलिजेंट जब ये नहीं था, उनके समय पर नहीं था, जब ये नहीं था तभी एपीजे अब्दुल कलाम आए, जब ये नहीं था तभी आइंस्टाइन आया। तो आप ये मत सोचिए कि ये है तो ही आगे बढ़ सकते हो, ये नहीं है ना, जब डिस्ट्रैक्शन का सोर्स लेस होगा ना, तभी आप ज्यादा आगे बढ़ पाओगे। तो ये दलील इसमें नहीं लगती है। बस, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल नम्रता जी, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन सोशल मीडिया के ऊपर। सो नम्रता जी, एक प्रश्न आया है और कि आपका दीक्षा लेने का अल्टीमेट पर्पस क्या है, और दीक्षा के बाद आप किस प्रकार के संयम जीवन का स्वप्न देखते हैं, यानी एक साध्वी जी के वेश में आप किस प्रकार जीवन जीते खुद को देखते हैं? पहली बात, मैं स्वप्न नहीं देखती हूँ, मैं अपना गोल बन फ्रैंकली मैं आपको कोई बड़ा चढ़ा की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे जब सपने देखती हूँ ना, तो वो सपने में मैं जी लेती हूँ वो जिंदगी, फिर मुझे वो रियल लाइफ में जीने में मजा नहीं आता है, क्योंकि मेरे अंदर डोपामिन रिलीज हो चुका होता है। आपको डोपामिन पता है? जिसको नहीं पता है आप गूगल कर लीजिए, सॉरी मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो रिलीज हो जाता है मेरा, फिर ना मजा नहीं आती है उसमें। और मुझे ऐसा लगता है लाइफ मजेदार होनी चाहिए। आप लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ऐसा है कि मुझे लाइफ मजेदार रखनी है, तो मैं ड्रीम नहीं रखती हूँ। मैंने हाँ गोल डिसाइड किया है, प्रिंसिपल डिसाइड किया है, और वो जो जर्नी है ना उसको कैसे जीनी है वो डिसाइड किया है, लेकिन उससे जो मिलने वाला है वो मैं पहले से नहीं सोचूंगी, मैं उसको एक्सपीरियंस करना ज्यादा ये करूंगी। और दूसरी बात, मैं संयम जीवन लेने जा रही हूँ, तो उसका बेस्ट भी है कि कई बार मैंने देखा है, मैं मेरे मेंटोर और वगैरह जो भी बात मेरे मोस्टली फ्रेंड्स सारे बड़े ही है, जैसे रमेश भाई है ना, अब वैसे ही मेरे मोस्टली आंटी अंकल वगैरह फ्रेंड्स है। उसमें दो प्रॉफिट है, एक जब भी मैं उनको मिलने जाती हूँ ना, वो मुझे उनके पास बिठाते हैं और मेरे सारे फ्रेंड्स नीचे बैठे होते हैं। नम्रता, बहुत खुशी हुई आपको देख के, और वो लोग जैसे देखते हैं। पहला प्रॉफिट ये हो जाता है कि आपको कोई अपोज या आपको कोई ये नहीं करता है, पहला प्रॉफिट। हाँ मजाक था ये, लेकिन हाँ ये फायदा है इसका। और दूसरी बात, उनका एक्सपीरियंस मुझे जानने मिलता है। आज मैं इतने जल्दी इतना आगे बढ़ी हूँ, तो मुझे लोगों के एक्सपीरियंस को लेकर, लोग बोलते हैं हर चीज खुद से एक्सपीरियंस करो, खुद से एक्सपीरियंस करो। मैं बोलूंगी यदि आपको जल्दी आगे बढ़ना है और आपको सच में सक्सेस अचीव करनी है, आपको आपका टाइम ले, देखो टाइम बहुत प्रीशियस है, आपको यदि समझ में आ जाए तो लोगों के एक्सपीरियंस द्वारा आप सीखोगे तो आप ज्यादा फायदे में रहोगे। मेरा ऐसा मानना है, हर चीज एक्सपीरियंस करो ये जरूरी नहीं है, कुछ चीजें। और रही बात कुछ चीजें आप एक्सपीरियंस करो वही बहुत अच्छी है, तो ये वाली चीज मैं एक्सपीरियंस करना चाहूंगी। और रही बात, हाँ ये वाली आपका एक प्रश्न का उत्तर, आपका दो प्रश्न थे एक प्रश्न में, वो दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। और पहला प्रश्न ये कि संयम जीवन में मैंने क्या ये बनाया है खुद के लिए। नॉर्मली मेरे 7 प्रिंसिपल्स थे। बी अवेयर ऑफ योर ओन माइंडसेट, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ। ओके, ऐसे कुछ कुछ अमुक मैंने प्रैक्टिस ऑप्टिमिस्टिक सेल्फ टॉक, पुश योरसेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये जो ऐसे मेरे खुद के कंफर्ट जोन वगैरह, तो ये सारी चीजें जो मेरे प्रिंसिपल मैंने खुद के लिए बनाए हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और परमात्मा की कृपा से यही सारे प्रिंसिपल यहाँ पर भी लगते हैं, संयम जीवन में भी लगते हैं। तो मैं वो सारे प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहूंगी जो मैं पहले फॉलो करती थी। और हेल्पफुल ये रहेगा कि पहले मेरे पास कोई हेल्प करने के लिए पर्सन नहीं रहता था, इस बार पूज्य यशवंत दिमाग से पूज्य संस्कार निधि महाराज साहब रहते हैं। फाइनली जब क्वेश्चन पूछती हूँ तो पहले बोल दिया जाता है कि जाओ जगह पे बैठ जाओ। साहब ऐसा कौन करता है, जाओ खुद से ढूंढ के लाओ आंसर। इतना अच्छा दिमाग चलता है तो पहले आंसर ढूंढ के लाओ, फिर हमको बताओ, रॉन्ग रहा तो हम क्लियर करेंगे, बट डायरेक्ट आंसर पूछने मत आओ। मुझे लगता है ये बेस्ट गुरु है मेरे मेरे मेंटोर भी ऐसा करते हैं, मेरा नसीब ऐसा है, मेंटोर भी ऐसा करते हैं, टीचर भी ऐसा करते हैं, और गुरुजी भी ऐसा ही करते हैं। वो बोलते हैं पहले आंसर फाइंड आउट करके आओ, फिर हम आपको जरूर क्लैरिटी देंगे। तो हाँ, मैं ये जो शासन, मेरा एक ही एम है वहां पर जाकर, जीपीएस होता है ना, गुरु मेरे लिए जीपीएस की तरह है। आप वहां पर आपका डेस्टिनेशन ये सेट कर दीजिए। उसके बाद यदि आपको किसी से, नॉर्मली जीपीएस गुरुजी है, लेकिन यदि आप रास्ता भटक रहे हो तो वापस शास्त्र वचन रहते हैं, और शास्त्र वचन जैसे आपको रास्ता नहीं पता रहा है तो वो वॉइस रहती है, वैसे ही सेम इसी तरह शास्त्र वचन और गुरुजी की आज्ञा। गुरुजी की आज्ञा क्यों फॉलो करनी है? क्योंकि उनके अल्टीमेट उनकी आज्ञा यही होती है जो परमात्मा की आज्ञा है। तो मेरा एक ही एम है दीक्षा लेकर कि मैं हो उतना आज्ञा का, परमात्मा आज्ञा पालन करूं और गुरुजी के समर्पित रहूं। बस यही मेरा एक मेरा एम ये रहेगा दीक्षा लेकर। अमेजिंग अमेजिंग नम्रता बहन,
एक प्रश्न आया है कि आपने आपके जीवन में इतनी सारी किताबें पढ़ी, आपने कहा कि मैंने 2000 जितनी किताबें पढ़ी, तो आपने 2000 किताबें कैसे पढ़ी और उसमें से कुछ खास किताबों का नाम दर्शक जानना चाहते हैं? मैंने एक्चुअली आज ही सारे चीजें मैंने ये की है, वरना यहाँ पर ही मेरे पास बुक रहती है, ऑफिस में ही बुक रखी हुई रहती है, मैंने आपको जरूर बता दी होती। बहुत सारी किताबें पढ़ी है, लेकिन मुझे भद्रगुप्त विजय जी महाराज के मैं डायरेक्ट किताबें आपको नाम दूं उससे अच्छा, ये मेरी स्पेसिफिक चॉइस हुई ना। आप पहले तय कर लीजिए आपको मेरी स्पेसिफिक चॉइस जाननी है, आपको आपके लिए पूछ रहे हो। मेरी स्पेसिफिक चॉइस बोलना चाहोगे तो मुझे नॉर्मली स्टोरी वगैरह थोड़ी कम पसंद आती है। मुझे फिलोसॉफिकल बातें थोड़ी ज्यादा, फिलोसॉफिकल नहीं बोलना, लेकिन आध्यात्मिक बातें मुझे ज्यादा रस देती है। जैसे पूज्य भुवन मंसूरी महाराज साहब, पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब, मुझे रामचंद्र सूरी महाराज साहब, आचार्य कुंदचार्य, इन लोगों की मुझे बुक्स बहुत पसंद आती है। स्वामी विवेकानंद, ये 5 जनों की मैं ज्यादातर बुक्स मैंने रीड की है मोस्टली। तो मैं, अरे आपको, और यदि आपको इंटरेस्टिंग फील्ड से आगे बढ़ना है तो कुछ भद्रगुप्त प्रियदर्शन विजय जी महाराज साहब, इनकी बुक पढ़िएगा, वो ज्यादा ही अच्छी रहेगी। और एक आधे बुक का नाम सजेस्ट करना चाहूंगी तो मुझे वो सारी बुक्स का एक्चुअली इतना परफेक्टली नाम याद नहीं, लेकिन अभी फिलहाल रिसेंटली जो मेरे बड़े भाई पढ़ रहे हैं, उनको काफी है तो वो पढ़ रहे हैं, उसमें शांति साहिबार है, बाय अरहम ग्रुप ने ये की है, उसको पब्लिश की है। ऑथर उनके परम पूज्य अजीत शेखर विजय जी महाराज साहब है, पूज्य अजीत शेखर विजय जी महाराज साहब है, सुन शांति साहिबार है। वो इतनी जबरदस्त वैसे शांतिनाथ भगवान की, और एक नेमी निरंजन, आपको वाकई में ये 2 किताबें मुझे ऐसा लगता है ये मेरी बेस्ट किताब है, रिसेंटली पढ़ी और बेस्ट किताब बन गई ये दोनों मेरी, तो जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। सो नम्रता जी, आपने कुछ करीबन 1.5 साल के अंदर 2000 या कितनी किताबें रीड की है, तो आप कैसे रीड करते थे इतना क्विकली? हाँ, और हाँ, आपके एग्जैक्टली। परिवार में भी सबको रीडिंग का शौक वगैरह है? परिवार में एक्चुअली सच बताया जाए तो बहुत सारी किताबें, वैसे रीडिंग का शौक रहता तो सारी किताबें पूरी हो जानी चाहिए थी अभी तक, तो उसके हम ज्यादा थैंकफुल नहीं थे पहले, तो लगता ही नहीं था कि हमारे पास किताब है, हमारे पास इतनी सारी चीजें, एक जस्ट किताब पढ़ने में आई और बाद में रुचि लगने लगे, होते 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 इंटरेस्ट आने लगा और वो इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। डैड का ऐसा था, डैड ने बुक्स ला के रखी, लेकिन खुद ने, मुझे लगता है खुद ने बहुत कम किताबें पढ़ी है डैड ने, खुद ने स्पेसिफिक, उनकी भी इतनी नहीं। उन्होंने ऐसा समझा कि सर हर माँ बाप अपने बच्चों को पैसे वगैरह देते, जायदाद वगैरह देते, मैं अपने बच्चों को नॉलेज देना चाहता हूँ, तो उनको भी, खुद को भी इंटरेस्ट था, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए। एक बात है, एक इंटरेस्ट होता है और एक वापस वो इंटरेस्ट को क्रिएट कर बरकरार रखना होता है, यदि आपको सच में कुछ ये करना है तो मुझे लगता है। हाँ, लेकिन मेरे बड़े भैया को काफी इंटरेस्ट, फिर पापा को धीरे धीरे, जैसे मुझे आया, डैड की वजह से ही मुझे आया, फिर मेरे रीड करने के वक्त, अब जैसे मैं कभी रीड कर रही हूँ और मेरी ऐसा होगा कि मैं थक गई हूँ रीड करते करते, तो मुझे इंटरेस्ट बहुत रहता था, तो जैसे डैड आते पास में, अब डैड के साथ क्या बात करूँ बैठ के, तो ऐसा पता डैड सामने से ही वो बुक लेते थे और रीड करने लग जाते थे। फिर बड़ा भैया आता था, मैं भैया बात करते हैं कभी भैया से ऐसे, तो ऐसे वैसे बात करने से अच्छा मैं सोचती थी भैया ये पैराग्राफ बहुत अच्छा है, पढ़ो ना, तो भैया बोलता है ऐसा क्या है, मतलब पढ़ो तो सही। फिर भैया रीड करता था, मतलब भैया कितना अच्छा पैराग्राफ है ना, तो भैया बोलता है आपने तो पढ़ने बोला तो ऑब्वियसली अच्छा होगा इसलिए, मतलब नहीं नहीं मुझे नहीं पता था क्या आता, मैं आपको रीड करा रही थी। तो क्यों, मतलब बोर हो रहा है मुझे खुद से रीड करने, तो मैं आपसे रीड करवा रही हूँ। तो यदि आपके पास स्मार्टनेस हो ना तो आप जल्दी वर्क हो जाता है, जैसे कोई भी पसंद आता है मैं उसको बोलती बुक रीड कर दो ना, यानी उसके साथ मैं काम भी करती थी। उसके साथ साथ मेरे कई बार ऐसा होता था कि कुछ काम है इस पे, तो मेरे काम हो जाते हैं और मैं रीडिंग सुनती हूँ, उनकी आवाज वगैरह सुनती हूँ। तो एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है, मैं कुछ भी चीज करूँ तो उसके साथ एक बुक तो हमेशा साथ में रहती थी। जैसे एयरपोर्ट पे बैठी हूँ और फ्लाइट डिले हो गई, या फिर ट्रैवलिंग कर रही हूँ, तो उसमें वैसे यूजुअली अच्छी नहीं होती है आंखों के लिए, लेकिन हाँ यदि पढ़ना अच्छा नहीं होता है आंखों के लिए तो ट्रैवलिंग करते करते ये यूज करना भी अच्छा नहीं होता है, इससे तो अच्छा है आप वो पढ़ो, तो मेरे उसको प्रेफर करती थी। तो ऑब्वियसली यदि आप सच में कुछ करना चाहते हो तो आपको टाइम निकल ही जाता है, मैं ऐसा मानती हूँ। अच्छा, मुझे ये समय इसलिए मिला क्योंकि मेरे पास 24 आवर्स होते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो नाइस। वन लाइन में आंसर दे दिया आपने। रमेश भाई, आपको कोई प्रश्न? See, one of my questions, Namrata ji, is आपने मासक चमन किया, and when I saw your profile first, one is what made me is Saint Xavier's. Of course, I talked about it. The second thing is आपने 119 कल्याणक भूमि के दर्शन करते हुए आपने मासक चमन किया at this young age. What was your experience doing Master Chaman? A lot of people wanted to do. I also dreamt about doing it. How was your experience doing Master Chaman, and where you got that energy? Because अगर आप ये किसी को बोलेंगे तो वो बोलेंगे impossible है,
मासक्षमन करके इतनी यात्रा करना, ट्रैवल करना और उसमें सब चीज विधि विधान सब फॉलो करना. So where do you think, humanly, if you talk to the people, they will say it is impossible. But where do you think you got this energy from, and what was your experience? Okay, first of all, मैं बॉक्सर हूँ, मेरे पास लोग बोलेंगे स्टैमिना ऐसे आपसे हो गया. दूसरी बात, मैं ये बात ऐसे बोलनी नहीं होती है सोशल लाइक. मैं एक बात बताना चाहूंगी, मैं प्रीमेच्योर बेबी हूँ मॉम की, तो ऑब्वियसली मेरे पास मुझे 111 एलर्जीज है, मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है, टीबी हो चुका है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम. और जब मैंने फॉर्म में पढ़ा, मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, जब मैं फॉर्म में पढ़ रही थी तो वहाँ पे लिखा होता कल्याण भूमि में ब्याशने करने कंपलसरी है. आई वाज लाइक, अरे अभी तो मेरी तबीयत ठीक हुई है फाइनली, और अभी मुहूर्त निकला है दीक्षा का, तो और डैड ने भी इसीलिए परमिशन दिया था. वो ऐसा बोलते हैं कि हम आपको अच्छे से खिला पिलाते हैं और आप जब भी कहीं बाहर जाते हो 4-5 किलो वजन कम करके आते हो, इसलिए इस बार मेरी इच्छा ही नहीं हो रही आपको दीक्षा के पहले कहीं भेजूं, वरना लोग बोलेंगे दीक्षा के मुहूर्त निकल गए फिर भी वो खिला के अच्छा नहीं कर रहे. फ्रैंकली मुझे ऐसी बातें मजाक से वे में बता देते. और मुझे ऐसा लगा कि वहां पर जब एयरपोर्ट पे मैं बैठी हुई थी ना एक्चुअली, तो पाचम थी, ज्ञान पाचम, तो उस दिन फास्ट करते सभी, मोस्टली लोग फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं. मैंने देखा इतने छोटे छोटे बच्चे वगैरह अगर उपवास कर रहे हैं आज, तो मुझे भी करना चाहिए. और एक प्रश्न आया कि कैसे भूख, और ये कैसे ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े क्वांटिटी में वो जो चीज है वो चाहिए रहती है मुझे. दाल रोटी क्यों ना, दाल रोटी मुझे चाहिए, 3-4 रोटी चाहिए. तो उस दिन प्रश्न आया, अच्छा मैं एक बात लाइन यूज करती हूँ, उसमें डायलॉग यूज करती हूँ, आत्मा अलग है शरीर अलग है, किसी ने सुना है? इस बचपन से सुनते आ रहे हैं. हाँ, मैंने देखा है आत्मा अलग है शरीर अलग है. मैं डायलॉग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम देखते हैं, पसंद आता है और उसको कभी सोचते नहीं है और चिंतन नहीं करते, इसलिए मैंने इसको डायलॉग के थ्रू यूज किया. कोट और या कोई अच्छी चिंतन स्वरूप लाइन यूज नहीं की मैंने, डायलॉग इसीलिए इस लाइन के लिए यूज किया, डायलॉग वर्ड. लेकिन ये डायलॉग मैंने भी बहुत बार सुना था और पहली बार इस पे चिंतन करने का आया, आत्मा अलग है शरीर अलग है. तो मुझे प्रश्न था, नम्रता कैसा ना, मैं खुद दीक्षा ले रही हूँ और मुझे नहीं पता आत्मा सच में अलग है, शरीर सच, आत्मा और शरीर सच में अलग है. तो मैं सोचा, अरे आप दीक्षा लेते हो, ये क्या सोच रहे हो? मेरे दूसरा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड है ना, दोनों प्रश्न कर रहे थे, बात कर रहे थे मजाक से. 2 मन होते हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं. तो एक मन ने बताया, नम्रता आत्मा अलग है शरीर अलग है, सब सही बात है, लेकिन शरीर की जरूरत होती है. डोंट फॉरगेट आपने डाइट एंड न्यूट्रिशन का कोर्स किया है. फिर मेरा दूसरा मन होता है, नम्रता बीएससी इन साइकोलॉजी की है, डाइट एंड न्यूट्रिशन का कोर्स किया है, साथ में बीएससी इन साइकोलॉजी भी की है ना, माइंड की पावर को समझिए. और मैं यार क्या हो रहा है मेरे साथ, आत्मा अलग है शरीर अलग है, इसमें इतनी सारी दलीलें चली हमारे, सॉरी मेरे ही अंदर दोनों के. इसमें फाइनली ऐसा लगा ये क्वेश्चन मुझे आया ना, तो अभी ये क्वेश्चन को मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, तो मुझे इसको एक्सपीरियंस करना होगा. चलो रेडी हो जाओ, आज उपवास करते हैं. और पचकान मोबाइल में से एकाशना बैशना अमिल का पचकान आता था, बट उपवास का पचकान नहीं आता था. गूगल किया और उपवास का पचकान, सोचा अभी फ्री बैठी हूँ, फ्लाइट डिले हो गई है, तो ऑब्वियसली खाना भी अभी लेट ही मिलेगा, तो क्यों ना मैं उपवास का पचकान लर्न कर लूँ और आज उपवास कर लूँ. 3-3.5 बज गए, उपवास का पचकान लर्न किया और मन आज पहली बार उपवास लर्न किया, आत्मा लगे शरीर लगे, जानना है तो अट्ठम कर लो. उसमें हम देखते कोशिश करते हैं, एकदम भाव तपस्या की, 28 वगैरह की है मैंने, 1 वर्ष तक भी किया है, लेकिन कभी भाव तपस्या नहीं की, करने मात्र से किया है. तो पहली बार चलो तप का कॉन्सेप्ट क्या है रमेश भाई, क्यों करते हैं? I mean, very different concept for different people. कर्म निद्रा होती है, किसी को सेल्फ डिसिप्लिन है, विल पावर है, पर एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट रीजंस. नॉर्मली मेरा माइंडसेट था कर्म निद्रा के लिए तप करते हैं, लेकिन मेरा मासिक श्रवण करके, आपका दूसरा क्वेश्चन मैं पहले लूंगी, मेरा मासिक श्रवण करके ये एक्सपीरियंस था, तब एक आनंद की अनुभूति है. फाइनली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये आनंद की मैं कर्म निद्रा समझती थी, लेकिन पहली बार मैं क्लियर हुई कि ये एक आनंद की अनुभूति है. अब आनंद की अनुभूति कैसे, मैं आपको बताती हूँ. तपस्या मैंने पचकान अट्ठम का सोचा लेने का, और फिर भाव आया, मतलब आत्मा अलग है शरीर अलग है, ये क्वेश्चन दीक्षार्थी होकर आपको आया है ना, तो आपको इसके लिए थोड़ा ज्यादा ये करना होगा. तो मैं ज्यादा क्या करूँ, तो बोलता है एडवेंचरस करो, मन बोलता है. बोला एडवेंचरस तो मैं लाइफ टाइम करते आई, और एडवेंचरस में क्या एडवेंचर करूँ. तो दूसरा मन बोलता है 16 उपवास का पचकान ले लो, 3 के ऊपर के, 3 का मतलब 16 उपवास का पचकान ले लो. तो दूसरा मन हंसता है, अरे रहने दो, इतनी सारी तपस्या करनी है, डाइट एंड न्यूट्रिशन का कोर्स किया है, बॉक्सिंग की, समझता है ना, हम जितना बॉडी से हम जितना फिजिकली वर्क करते हैं उसके लिए हमको खाना जरूरी होता है. आप क्या मजाक कर रहे हो, हमको ट्रैवलिंग करनी है, मेरे साथ 13 साल की मेरी बहन है, उसका भी ध्यान मुझे रखना है. एक फ्रेंड है जो मुझे खुद का ऐसा, उसके आप आलम्बन के रूप में हो, आप कुछ हुआ तो वो ये कर देगी.
मतलब जान दो, जो भी वो क्वेश्चन आया ना 16 उपास का पचकान ले लेते, 16 उपास का पचकान ले लिया। बाद में प्रार्थना की, बाद में ऐसा अरे मैंने भगवान का फोटो देख लिया होता तो, फिर ऐसा सोचा भगवान का फोटो देख लिया, तो भगवान का फोटो देख लिया, ये मुझे ख्याल आया ना कि मैंने भगवान का फोटो यदि सामने या कोई गुरु भगवान मुझे पचकान देते, पहली बार लाइफ में इतना बड़ा पचकान लिया है, तो कोई मारा साहब देते तो, और दूसरा ये आया मन में कि कोई भगवान का फोटो देख लेते तो, मोबाइल था ही ना, गूगल पे मैंने पचकान सर्च किया, मैं फोटो क्यों नहीं किया। तो दूसरी बात ध्यान में, इसका मतलब मुझे परमात्मा से प्रेम है, इसलिए तो ऐसे भाव जागे कि वो मेरे सामने रहे होते तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि उनके वचनों पर श्रद्धा रखकर उनसे ऐसा एक निश्चय करते, जिस दिन बैठे बैठे खमाश ना दिया, भले आज पचकान ले लिया, लेकिन जिस दिन बैठे बैठे खमाश ना दिया, जिस दिन मुझे बुखार हुई, पित्त हुआ, उस दिन मैं पारना कर दूंगी। भले ही पचकान लिया है, लेकिन मुझे लगता है हमारे शास्त्र में लिखा है कोई भी चीज आप डिस्टर्ब करके कर रहे हो, मैंने आपको जैसे बताया तब आनंद की अनुभूति है, तो तब वो नहीं पता था। लेकिन एक बात तो थी कि कोई भी चीज आप शरीर, देखो आत्मा की साधना कर रहे हो, शरीर को साथ में लेकर, गुरु जी बहुत बार बोलते हैं कि इसका भी आपको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना इन इस पे फोकस करना, ऐसा नहीं, इसको इसका खाता देना है, इसको देते रहना है जो इसकी जरूरत है, और उससे काम निकालना है। जैसे हम मोबाइल को चार्जिंग की जरूरत होती है तो चार्जिंग दे देते, लेकिन चार्जर पूरे दिन पकड़ के नहीं बैठते, यही पकड़ के बैठते हैं, बस उसी तरह नहीं क्या है ना, शरीर को उसकी चार्जिंग दे देनी है और पकड़ना आत्मा को ही है, नम्रता। तो ये बातें मुझे याद आने लगी सारी, और उस दिन डिसाइड किया जिस दिन मैं बैठे बैठे खमाश ना दे दिया उस दिन पारना कर दूंगी। और नॉर्मली मेरे काउसव वगैरह होते हैं, खमाश ना एक्स्ट्रा क्रियाएं होती है, प्रतिक्रमण बैठे बैठे करने का नहीं, ये सारी चीजें सेट कर रखी थी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन चौथा दिन 5वां दिन। और 5वें दिन हम राजगुरु के पहाड़ पे थे, 3 पहाड़ की यात्रा की, और मेरे पैर दुख रहे थे, मैं रूम में आई और खुद के पैर दबाने लगी। मेरी बहन है 13 साल की, वो देखती है, वो खुद भी पैर दबाने लगी उसके खुद के ही। नम्रता दीदी अच्छा कॉन्सेप्ट है, खुद के पैर खुद दबाओ, मस्त रिलैक्स भी फील करो, और किसी को ये भी नहीं, नॉर्मली हम किसी के आधीन भी नहीं हो रहे। 13 साल की बच्ची ऐसा बोलती। फिर एक दीक्षार्थी बहन है, नम्रता में अरे अच्छी आइडिया है, खुद के पैर खुद दबाओ, वो भी खुद के पैर दबाने लग गए, क्योंकि इतनी यात्रा की स्वाभाविक बात है, थोड़ा बहुत तो दुखेगा, लेकिन किसी और को बोलते नहीं कि भी दीक्षार्थी है ऑब्वियसली। तो मैंने ऐसा सोचा मेरे पैर इतने दुख रहे, तो इतने छोटे छोटे लड़कियां जो है वो भी तो यात्रा के लिए आए हैं ना, उनके भी तो पैर दुख रहे होंगे। उनके रूम में गई, घर से बाम लाया है, तो कुछ और तो चीज में क्या दीक्षार्थी को दूं, लेकिन मुझे एक्चुअली दीक्षार्थी लोगों से मिलके बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज मैं दीक्षार्थी हूँ, इसलिए मुझे वो बोलना अच्छा नहीं लगेगा शायद, लेकिन मेरे लिए दीक्षार्थी, सच बताओ मेरे लिए वो ऑनेस्टली भगवान के स्थान पे, क्योंकि वो इतना सब सोच रहे हैं ऐसा। मुझे दीक्षार्थी फिलहाल अब जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे मत लीजिए इस वे पे, मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात है। तो मुझे इतनी खुशी होती है वो दीक्षार्थियों को देखकर, एक साथ 120 दीक्षार्थी, मुझे मैं वर्ड्स में उसको बयान नहीं कर सकती हूँ, मैं कितनी ज्यादा थैंकफुल वो प्रवीण भाई लोढ़ा जो ये अरेंज करते हैं उनको थी, क्योंकि इतने सारे मुमुक्षु मैंने मेरे लाइफ में देखे एक्चुअली पहली बार, जो इतना महान कार्य करने के लिए खुद से जंग जीत रहे हैं। एक्चुअली नॉर्मली बाहर से आप किसी से भी जीत सकते हो, जीतना हो तो खुद से जीतिए, उसमें ज्यादा मजा है, उसमें ज्यादा एडवेंचर है, उसमें ज्यादा हैप्पीनेस है। तो वही सोचकर मुझे लगा वो इतने बाल मुमुक्षु है, उनके पैर मुझे दबाने चाहिए, तो मैं दबाने गई। अभी एक रूम में 6 मुमुक्षु थे, तो एक रूम में दबाए, तो मैंने सोचा अभी ये छोटे बच्चों को तो, लेकिन जो बड़े आंटी होंगे उनके भी तो दुख रहे होंगे, उनके दबाने गए, उनके दबाए। फिर एक प्रश्न आया, बड़े और छोटे का लॉजिक ही कहाँ लगता है ना, मतलब बी प्रैक्टिकल, आप इतने मेन अभी यंग एज के हो, आपके भी पैर दुख रहे हैं ना, तो बड़े और छोटे का कुछ लॉजिक नहीं लगता है, सबके पैर दुख रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं। 7 बज रहे थे, एक्चुअली नॉर्मली मुझे खाना होता नहीं था, इसलिए मैं प्रतिक्रमण पहले कर लेती थी, और प्रतिक्रमण यदि सब जन साथ में रहे तो साथ में कर लेने का, या फिर जैसे अनुकूलता, नॉर्मली कभी साथ में कर लिए, कभी सबके साथ कर लिए। तो 7 बजे से 11 बजे तक मेरा क्रम हो रहता था कि, और उसके बाद से सच बताऊं मुझे बहुत शाता मिलने लगी। वो 5वां दिन था राजगुरु का, उसके बाद मेरे पैर दुखे ही नहीं, और उसके बाद कभी हाथ भी दुखे नहीं, कुछ दुखा ही नहीं। मुझे लगता है जब हम किसी को शाता पहुंचाते हैं ना, तो खुद को शाता बहुत अच्छी मिलती है। आज तक लाइफ में सब हासिल किया, लेकिन जब एनजीओ खोला और किसी को जरूरत की चीजें दी ना, नॉर्मली कुछ मैंने महानता किया ही नहीं। लोग बोलते हैं आप महान हो, लेकिन मैं महान हुई नहीं, क्योंकि वो मेरा नॉर्मल कर्तव्य है, मेरे पास है, मैं उनको दे रही हूँ। वो आपके हिसाब से आपकी गुण दृष्टि है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, बाकी मेरे लिए नॉर्मल कर्तव्य है। तो देने में बहुत मजा आई थी। मैंने किसी और के लिए नहीं, मैंने मेरे खुद के लिए किया था, फ्रैंकली स्पीकिंग। वैसे ही जब मैं किसी का पैर दबा रही थी, मुमुक्षु देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, और उनके पैर दबाकर मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ये जो कार्य थे ये नॉर्मली मेरे खुशी के लिए थे, और वो मुझे काफी अच्छे रहे। और मेरा एक्सपीरियंस मासिक शमन का इतना अच्छा रहा। इसमें 2 बातें, एक तो परमात्मा ने जो बोला है नित्य क्रम होना चाहिए एक मुमुक्षु का, वो मैंने टोटली फॉलो किया। एक उसने बल दिया है, दूसरा बल परमात्मा की साधना भूमि थी।
खुद परमात्मा। नॉर्मली हम बायोलॉजी स्टडी की और उसमें भी मुझे मेरे मेंटोर ने एक बार बताया था, नम्रता, एक मैंने कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में पढ़ा था कि कोई बैठता है तो 100 ईयर्स तक उसकी वाइब्रेशन वहां पर रहती है, मतलब हम लोग भी मानते हैं। तो वो बात कितने पर सही है, मेरे मेंटोर ने जस्ट कहाँ से रीड की थी और मुझे बता रहे थे, तो मुझे नहीं पता कितने % राइट है, लेकिन एक बात मेरे मन में एक श्रद्धा बैठ गई, एक नॉर्मल इंसान की वाइब्रेशन इतनी रह सकती है, तो ये तो परमात्मा और उनकी साधना भूमि की वाइब्रेशन कितनी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बल दे रही थी। बाकी सच बताओ तो इम्पॉसिबल चीज, आज भी मुझे कोई पूछे, नम्रता आपने 32 उपवास किए, तो मैं बोलती हूँ मुझे भरोसा नहीं है मैंने 32 उपवास किए, क्योंकि कुछ चीजें, और मुझे लगता है सही एडवेंचरस था, और क्योंकि एडवेंचरस इसलिए था क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई है इसके बाद। मासिक शमन मैंने किया इसलिए खुशी नहीं हुई, मेरे जैसे व्यक्ति ने मासिक शमन कर लिया, ये मेरे लिए एक आश्चर्य की बात है। तो ये सारी एक्सपीरियंस आपको तभी होता है जब आप फेथ रखते हो पहला तो, और दूसरा 100% आप रेडी होते हो। तो मुझे लगता है फास्टिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यदि आपको फोकस्ड होना हो तो आप मंथली एक बार, जैसे 14 का होता है, वो करना अच्छा रहेगा। Thank you. I think very well explained. Faith होना चाहिए. I think you also experienced कि you don't believe that you have done it. Greatly shared. नील भाई. समय हो रहा है, पर ऐसा हो रहा है कि और सुने और बहुत सारी चीजें पूछनी। एक अंतिम क्वेश्चन पूछूंगा नम्रता जी, हमारे साथ बहुत सारे युवा मित्र जुड़े आज, सो आप जैन टॉक्स की इस प्लेटफॉर्म से युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं इतना ही बोलूंगी कि लोग मुझे बोलते हैं, आज युवाओं को मैं क्या बोलना चाहूंगी, मेरे फ्रेंड्स का हमेशा मोस्टली यही क्वेश्चन होता है, नम्रता हम कोई मोटिवेशनल, एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि 9-8 सेम ही क्वेश्चन आए मुझे, मेरे इसमें बताया था सेशन होने वाला है, लिंक भेजी थी, तो मैं बताया था एक क्वेश्चन का आंसर दे देना, तो फ्रेंड्स का एक आंसर देना चाहूंगी इस बहाने। नॉर्मल सबके साथ होता है शायद। मुझे फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा था कि नम्रता, हम जब कोई भी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो देखते हैं या कोई अच्छी सी स्टोरी सुनते हैं तो काफी मोटिवेटेड हो जाते हैं। ओके, हम का मोटिवेटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? हेलो, या व्हाट हैपेंड नम्रता मैम? मोटिवेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रोत्साहन, समथिंग। नहीं, वो तो एनकरेजिंग को हुआ। सकारात्मकता नहीं, पॉजिटिविटी को हुआ। ओके, मुझे गूगल करना पड़ेगा, सॉरी। मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाती है, वो सडनली निकल जाता है क्वेश्चन, सॉरी। ये आप इंग्लिश वर्ड यूज कर लीजिए। मोटिवेशन ही है, दूसरा वर्ड नहीं है, मैं ट्राई कर रही हूँ हिंदी का लेकिन नहीं मिल रहा है इसका। तो मोटिवेटेड हो जाते हैं, तो बाद में वो मोटिवेशन 1 दिन 2 दिन 1-2 घंटा 4-5 घंटा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीना रहता है, उसके बाद नहीं रहता। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो तो आप इसका आंसर दीजिए कि हम इससे कैसे ओवरकम हो सकते हैं, हमको कैसे डिस्ट्रैक्शन हमारा कम होगा। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी इसके लिए, बेस्ट वे, जब आप रोज खाते हो तो आप बहुत हेल्दी रहना चाहते हो इसलिए खाते हो क्या? यदि हेल्दी रहना चाहते हो तो फिर आप यदि आप हेल्दी रहना चाहते हो तो आप जंक फूड नहीं खाते, तो ऑब्वियसली बात, आप हेल्दी रहना चाहते हो इसलिए नहीं खाते, वो निकल रहा है इसलिए आपको वापस से खुद को ये करना है। नहाते हो तो फ्रेश फील होने के लिए नहाते हो, क्योंकि 2-3 घंटे बाद आप वापस वैसे स्वेट आने वाला है और वही सारा कॉन्सेप्ट वापस से वैसा होने वाला है, तो आप नहाते मेल निकालने के लिए नहाते हो, ना कि आप फ्रेश फील करो। कॉन्सेप्ट नहाने का और खाने का ये कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। वैसे ही सेम, जब आपको नेगेटिविटी, जब आपको नहीं कहना डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, तो उसको आप सोचते हो मैं एक चीज देख रहा हूँ मुझे असर क्यों नहीं कर रही, क्योंकि एक चीज आपको कभी भी असर करेगी ही नहीं। यू हैव टू प्रैक्टिस इट, यू हैव टू, आपको बार बार उसको सुनना पड़ेगा, बार बार उसको दोहराना पड़ेगा वो चीजों को, और बार बार उसको अप्लाई कर उसका ट्राई करना पड़ेगा। सेम उसी तरह ये पॉजिटिविटी काम करती है। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ऐसा, हम 24 घंटे मोस्टली डिस्ट्रैक्शन में ही जीते हैं, 22 घंटे समझ लो। बाद तो सोने में भी कई बार मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोलते ना, बेटा सोने में हमेशा नेगेटिविटी क्यों आती है? मतलब क्योंकि आप नॉर्मली ड्रीम्स, हम लोग तो ऐसा मानते हैं, साइंटिफिकली ऐसा हम लोग, यानी अब मैं नहीं हूँ, साइंटिफिकली ऐसा मानते हैं कि जो हम दिन भर सोचते हैं और फिर वही रात में गैस की वजह से, वो ऐसा सारा कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से ड्रीम्स आते हैं। तो आप नॉर्मली वही पूरे दिन में सोच रहे हो, तो पूरे दिन आप जब डिस्ट्रैक्शन में हो, नेगेटिविटी में हो, तो पॉजिटिविटी आएगी कैसे? इसलिए मुझे लगता है ये बेस्ट वे, जिन वाणी का एक बेस्ट वे मुझे लगता है जैनिज्म का मुझे सबसे अच्छा पार्ट कोई लगता हो तो ये जिन वाणी श्रवण है। आप 1 घंटा, और ऐसा तो होता नहीं कि महात्मा लोग कंटिन्यू उपवास के बारे में बताते हैं, कंटिन्यू अध्यात्म या आत्मा के बारे में बताते हैं,
ये लाइफस्टाइल के, हमारे लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो प्रवचन खुद के लिए नहीं देते, ऑब्वियसली किसी और को हेल्पफुल हो तो उसी वे में वो लोग देते हैं। तो मुझे लगता है हम जब हमारे 23 घंटे हमारे ऐसे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है 1 घंटा तो हम ऑब्वियसली खुद के लिए पॉजिटिविटी और कंसंट्रेशन के लिए हम ये कर सकते हैं। तो मेरा आज के युवाओं के लिए ही रहेगा कि आपको ऐसा प्रश्न उठ रहा है ना कि हमको नेगेटिविटी ज्यादा आ रही है या हमको ऐसा क्यों हो रहा है, हम थोड़े टाइम का कुछ वीडियो देखते तो ही मोटिवेटेड फील करते हैं, तो आप रोज उसको थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविटी इंटेक करिए, अपने आप से वो आगे बढ़ेगा। वेल सेड नम्रता बहन, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया धर्म श्रवण का, जिनवाणी श्रवण का, कि हमें डेली अपने जीवन में से कुछ टाइम निकालना चाहिए। आपने कहा कि 1 घंटा एटलीस्ट निकालना चाहिए जहां हम धर्म श्रवण करें, और बार बार वो सुनते जाए तो डेफिनेटली वो संस्कार हमारे अंदर नील दृढ़। भाई सॉरी, हाँ, अगर मैं यहाँ पर रुक जाती तो मुझे प्रश्न आता कि धर्म, आपने क्या बोला, लाइन वापस से कर सकते हो? धर्म, सो बेसिकली आपने धर्म श्रवण की बात की, जिनवाणी श्रवण बस की। बस बस। तो नॉर्मली मुझे प्रश्न आएगा धर्म क्या है, मुझे तो धर्म पर बिलीव नहीं है, तो मैं क्यों धर्म वाणी सुनूं फिर? ओके, बेसिकली मेरा मापदंड ये है धर्म का अर्थ क्या है। अगर मैं आज ये आंसर ना दूं तो लोगों को क्वेश्चन आएगा, और उनको, मुझे ये क्वेश्चन आया तो ऑब्वियसली उनको भी आएगा। तो अभी आंसर भी आ ही गया है साथ में, तो मैं बता देती हूँ क्वेश्चन के साथ। मेरे लिए धर्म का मापदंड ये रहेगा कि आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। लोग बोलते हैं कि हमारे पास नेगेटिविटी, हमारे पास काम है, हमारे पास ऐसा है, तो उसमें हम खुश, कर्तव्य है तो उसमें हम खुश कैसे रह सकते हैं? लोगों का कई बार प्रश्न होता है कि कर्तव्य में फिर हम खुद की लाइफ, तो वही लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग इज रिलीजन। तो धर्म ये है, इसलिए आपको धर्मवाणी सुननी है आपके लाइफ के लिए। क्या बात है, आपने पूरा सार दे दिया। समता, इक्वानिमिटी, माध्यस्थ भाव और सब कुछ ही आपने इससे बता दिया। अमेजिंग अमेजिंग नम्रता बहन, एकदम थॉट प्रोवोकिंग ये था, और डेफिनेटली जितने भी दर्शक हैं उनके लिए भी बहुत थॉट प्रोवोकिंग रहेगा, और बहुत सारे टेकअवेज, बहुत सारे टेकअवेज। मैं सभी दर्शकों की ओर से आज का हम ये कार्यक्रम विराम करें उससे पहले नम्रता बहन को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगा। और हमें बहुत खुशी है कि आप इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, इतनी क्लैरिटी के साथ संयम मार्ग के ऊपर आगे बढ़ रहे हो। सो हम बहुत शुभकामना आपको देते हैं, और यही चाहते हैं कि आपका जीवन वंदनीय बने, अभिनंदनीय बने, और हमारे जैसे जीवों के लिए अनुकरणीय बने। सो इसी भावना के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। और विराम देने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा नम्रता बहन का। मुझे मालूम है आपकी 1 वीक के बाद दीक्षा है, बहुत ही टाइट शेड्यूल है, पर फिर भी आपने हमें समय दिया इतना अमूल्य, और आपका जो जीवन एक्सपीरियंस था, आपने, आपकी जो समझ थी, उसकी क्लैरिटी हमें भी दी, आपका जो पर्सपेक्टिव है, व्यू पॉइंट से चीजों को लेके वो हमें बताया, और सभी युवा कन्विंस हुए रहेंगे। यानी इतने लॉजिकल और स्पष्ट आंसर थे, आपने एकदम लॉजिकल और स्पष्ट आंसर दिए, और इस बदल बहुत बहुत धन्यवाद जैन टॉक्स की ओर से। और इसी के साथ हम आज के सेशन के विराम की ओर बढ़ेंगे। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। नील भाई 1 मिनट। हाँ नम्रता बहन। मुझे ऐसा लगता है आपने जो कॉन्सेप्ट ये बनाया है जैन टॉक्स का, इसमें आपका पर्सनल स्वार्थ तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं आपको धन्यवाद मेरे शब्दों के द्वारा जितना भी दूं, जितना भी अप्रिशिएट करूं उतना कम है आपको, रमेश भाई को। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइस दैट आपने, विक्रम भाई या जो भी, आपने ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लाया है द जैन टॉक्स का। बहुत अपने द जैन फाउंडेशन, आपको रियली धन्यवाद है इस बात का। इसी बहाने यदि कुछ पर्सन, कोई लोग ये देख रहे हैं और उनका एक भी पॉइंट उनको यदि मेरे एक्सपीरियंस द्वारा, मेरे बातों द्वारा अच्छा लगा हो, तो उसका पूरा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, एक्चुअली मुझे नहीं जाता, क्योंकि मैं एक जरिया हूँ, लेकिन आप वो पहुंचाने के जरिया में आप सबसे मेन रोल पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो हृदय से आपकी धन्यवाद। और यदि कुछ भी जिनाज्ञा विरुद्ध बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। थैंक यू सो मच नम्रता बहन। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। हामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, नित्य में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम। प्रणाम नम्रता बहन। प्रणाम रमेश भाई। प्रणाम प्रणाम नम्रता बहन। प्रणाम रमेश भाई।